Very good evening, friends. Today we are here to discuss some important points which will help us in cracking case studies for liquidation process. मैंने कहा Definitely, 1600 ना definitely, विजय शर्मा जी म्यूट कर लीजिए. So, sorry. definitely, it is not a comprehensive treatise on case studies for liquidation process. But the points which we are going to discuss, they will definitely help us in cracking case studies. Because whether it be CIRP or liquidation, everything is process based. And if we understand the process, if we understand the intricacies, then definitely any case study is just very easy to answer. First of all, let us understand what are the various steps involved in liquidation process. First step definitely is appointment of liquidator, as we studied in CIRP also. In the last meeting of COC, if the COC feels that they should go for liquidation, then they will ask the existing resolution professional okay, if he would like to continue as liquidator and what will be his remuneration. So these things are decided in COC last meeting itself, and those details are shared with stakeholders consultation committee which is formed during liquidation process. We are all aware about it. Second step is regarding public announcement of liquidation. Commencement, that liquidation is commenced. There is a certain time period for it. We will see it in timelines. Then calling for submission of claims. Definitely claims are already there during CIRP, but now there is a call for submission of claims. Claimants are at liberty either to update their claims or to say that the claims, whatever they claim during CIRP, that stands it is, or even fresh claims they can lodge. So fresh claims to be invited under liquidation process in the respective forms for each category of creditors, and we have to remember the respective names of forms also. Then appointment of valuers. As we know, during CIRP also, both fair value and liquidation value is obtained from two registered valuers, and third if there is a huge gap between the two valuations, both for both as fair value and liquidation value. We studied last day also, yesterday, that this fair value is to be calculated on aggregate basis of assets, and this liquidation value is calculated asset wise. And but still, if the liquidator feels that the valuation which he got is not satisfactory or it needs to be updated, then he can go in for fresh valuation also. There is no bar on it. Step 3 is verification and acceptance of claims. So there is a small difference here also regarding acceptance of claims, because the resolution professional is basically collates the claims. He does not reject the claims. Basically, he does not have power of rejection. He can ask for the documents from the claimants, and he puts forth both the figures, whatever is the amount claimed and whatever is the claim admitted by the RP. He puts both the figures before COC. But here the liquidator assumes the role of an adjudicator, and he can reject the claims as well. Besides that, as in CIRP there is COC, here there is stakeholders consultation committee. We saw the composition of stakeholders consultation committee also while we studied these liquidation provisions. But definitely the stakeholders consultation committee recommendations are not binding. While in COC, every decision has to be taken with the concurrence of COC only, but here the liquidator is the all in all. And the stakeholders consultation committee, although they give their recommendations, although meetings take place, even though meetings take place at their behest also, but the recommendations are not binding on the liquidator. Definitely he has to record reasons in writing why he differs with the opinion of the stakeholders consultation committee. Just a minute.
अच्छा, next is preparation of asset memorandum and other reports. Then formation of liquidation estate. We studied during the liquidation provisions what is included and what is not included in liquidation estate. Then sale of assets, there is a definite process. Then distribution of assets as per waterfall mechanism, and dissolution of the corporate debtor. It is to be completed within 1 year from the liquidation commencement date. Earlier this period was 1 year. Most of these things we have already studied while studying liquidation provisions. Now comes the model timelines. What is to be done? अब आप लिक्विडेटर बन गए. अब लिक्विडेटर बनने के बाद आपको करना क्या है? ठीक है, सबसे पहले तो आपको फॉर्म नंबर IP1 भरना है. ठीक है, सोनी जी बता दीजिएगा अगर इसमें कोई चेंज हो तो. ठीक है, अगर इसमें कोई चेंज हो तो आप बता दीजिएगा. तो विद इन 3 days ऑफ रिटर्न कंसेंट बाय IP एज लिक्विड, सबसे पहले तो आपको रिटर्न कंसेंट देनी है. ठीक है, by RP can continue as a liquidator unless it is changed by the adjudicating authority, and normally change is done when either the resolution plan is not submitted or the resolution plans which is submitted is not in accordance with the provisions of section 30. But in any case, the consent has to be obtained from IP to act as liquidator, and it is to be done within 3 days. ठीक है, ये फॉर्म भरना है आपको, फॉर्म नंबर IP1. तो यू कैन गो थ्रू द फॉर्म ऑल्सो. सो दिस इज बेसिकली consent to accept assignment as liquidator. ठीक है, इसमें डिटेल्स ऑफ IP रहेंगी, एप्लीकेंट की डिटेल रहेंगी, डिटेल्स ऑफ द पर्सन विच विल अंडरगो द प्रोसेस. ठीक है, ये अब आप कहोगे कि भाई ये जो एप्लीकेंट है और डिटेल्स ऑफ द पर्सन विच विल अंडरगो द प्रोसेस दोनों डिफरेंट कैसे हो जाएंगे? नेचुरली डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट एप्लीकेंट और कॉर्पोरेट डेटर डिफरेंट हो सकते हैं. ठीक है, टर्म्स ऑफ कंसेंट, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट एटसेट्रा, सबसे पहला ये काम. उसके बाद में हो जाएगा आपका कमेंसमेंट ऑफ लिक्विडेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर. ये हमारी जीरो डेट है. जैसे प्रोजेक्ट में जीरो डेट होती है, ठीक है ना, तो वहाँ हमने क्या किया था, वहाँ हमने 180 डेज को स्टडी किया था. ऐसे यहाँ पर हम स्टडी करेंगे 365 डेज को. ठीक है, सोनी जी कौन है, इनको एडमिट कर लीजिए. सर ये मेरा ही है, ये मैं एग्जिट हो गया था कोर्स से. वो अच्छा, लैपटॉप पे भी लगा रखा है, मोबाइल पे भी. अच्छा, तो मैं किसी और को भी, हाँ एक बार एडमिट कर दिए मेरे को. कर दिया. ये अच्छा कोर्स बना दो. ठीक है, बना दे सर. हाँ जी, तो अब ये हो गया यहाँ पर कमेंसमेंट ऑफ लिक्विडेशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर. ये जीरो डेट है आपकी. ठीक है, रिलेटेड सेक्शन आपके सेक्शन 33 और 34 है. उसके बाद में आपको पब्लिक अनाउंसमेंट फॉर्म बी में होगी. जैसे वहां पर CIRP में क्या था, फॉर्म ए था, है ना, यहाँ पर है फॉर्म बी. वहां पर कितना था, विद इन 3 days, इमीडिएटली या विद इन 3 days था, है ना, पब्लिक अनाउंसमेंट. यहाँ पर कितना है, विद इन 5 days ऑफ अपॉइंटमेंट. ठीक है, रिलेटेड सेक्शन और रिलेटेड रेगुलेशन भी इसमें लिखा हुआ है. ठीक है, और ये भी मतलब मैक्सिमम पीरियड है, ये नहीं कि जरूरी 5 दिन में ही करना है, आप 1 दिन में कर लो बेशक. ठीक है, उसके बाद में आ गया आपका अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्टर्ड वैल्यूड. वहां पर भी क्या है, वहां पर भी 7 days ही है. ठीक है, और यहाँ पर भी, क्योंकि जैसे CIRP में एक ध्यान देने वाली बात है कि जो अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्टर्ड वैल्यूड्स है, इट इज इवन डन बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ COC. ठीक है ना, तो COC से भी पूछने की जरूरत नहीं है रजिस्टर्ड वैल्यूड्स अपॉइंट करने के लिए. यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर विद इन, यहाँ पर तो वैसे ही लिक्विडेटर ऑल इन ऑल है. ठीक है ना, तो विद इन 7 days ऑफ लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट आपको रजिस्टर्ड वैल्यूड्स अपॉइंट करने. आप अपॉइंट कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते. अगर नहीं करोगे तो जो वैल्यू ऑलरेडी है दैट विल काउंट. ठीक है, आप यू ऑलरेडी हैव द फेयर वैल्यू एंड लिक्विडेशन वैल्यू ड्यूरिंग CIRP. सो इफ यू फील द नीड यू कैन अपॉइंट, यू मे नॉट इवन अपॉइंट. ठीक है, आपको लगता है कि इट विल अननेसेसरी इंक्रीज द कॉस्ट, देन यू नीड नॉट अपॉइंट. नेक्स्ट इज फॉर्म नंबर CIRP 5.
This includes updated list of claimants. ठीक है, this is to be submitted within 7 days of liquidation commencement date. So this is the updated list of claimants, updated COC, details of the resolution applicants, details of resolution plan received, details of approval or rejection of resolution plan by COC, application filed with adjudicating authority for approval of resolution plan, details of resolution plan approved by the adjudicating authority, initiation of liquidation, expenses incurred on or by the RP, appointment of professionals and the terms of appointment, relation of the RP with the CD, financial creditors and professionals, support services taken from IPE, non-compliance with the provisions of the code and other laws applicable to the CD, etc. So this is CIRP 5 number form. This also has to be submitted within 7 days of liquidation commencement date. ये फॉर्म नंबर एक बार आप चेक कर लीजिएगा. उसके बाद में क्या है, this is the intimation to ROC about initiation of liquidation process. This is in form number INC 28. It is to be done within 30 days of liquidation commencement date. ठीक है. Now this submission of claims that also has to be done within 30 days of liquidation commencement. जैसे वहां पर कितना है, CIRP में पीरियड है 14 days. आप चेक कर लिया कीजिए, मैंने ये कंपाइल किया हुआ है, ऐसा नहीं कि मुझे पता है. I may be wrong also. You please check with the relevant regulations and sections. ठीक है, जब भी आप पढ़ें उसको साथ में, जैसे PPT खोले, वीडियो लेक्चर देखें, साथ में अपनी बुक खोल के उससे टैली कर लें. तो विद इन 30 डेज ऑफ लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट सबमिशन ऑफ क्लेम्स है और इंटीमेशन ऑफ डिसीजन ऑन रिलिंक्विशमेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट. तो अगर कोई जो भी सिक्योरिटी क्रेडिटर है, ही ऑल्सो हैज टू इंटीमेट whether he wants to exercise the option of realizing his security interest or he wants to relinquish his security and bring it to common hodgepodge. ठीक है, so this decision also has to be done within 30 days. Then section 38 subsection 5, it talks of withdrawal or modification of claim. So it can be done within 14 days of submission of claim. So if you want to withdraw or you want to modify the claim, then that can also be done within 14 days of submission. So 44 days are there. Then verification of claims received, it is to be done within 30 days from the last date of receipt of claim. ठीक है, तो 60 दिन यहाँ पर हो गए. उसके बाद में यहाँ पर हो गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन कमेटी. ये आपको बतानी है विद इन 60 डेज ऑफ लिक्विडेशन कमेंसमेंट. CIRP में क्या है, CIRP में इट हैज टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड विद 30 डेज. उसके बाद में इंटीमेशन अबाउट डिसीजन ऑफ एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ क्लेम्स, क्योंकि 30 डेज आपके पास इनिशियली है क्लेम के लिए. ठीक है, फिर आप विड्रॉ भी कर सकते हो, फिर आपने वेरीफाई भी कर लिए. ठीक है ना, तो वेरीफाई आपने 60 डेज तक कर लिया. उसके बाद में देन यू हैव गॉट अनदर 7 डेज. विद इन 7 डेज ऑफ एडमिशन और रिजेक्शन ऑफ क्लेम यू हैव टू इंटीमेट द रिस्पेक्टिव पार्टीज कि भाई ये आपका क्लेम एडमिट या रिजेक्ट हुआ है. एंड दोज पर्सन्स हुज क्लेम हैव बीन रिजेक्टेड आइदर इन पार्ट और इन फुल, दे कैन अप्लाई टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द लिक्विडेटर. ठीक, उसके बाद में है फाइलिंग द लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स एंड अनाउंसमेंट टू पब्लिक. ये कब होगा, विद इन 45 डेज फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ रिसीट ऑफ क्लेम्स. ठीक है, तो रिसीट लास्ट डेट ऑफ रिसीट ऑफ क्लेम क्या थी, 30 डेज, तो ये 75 डेज हो गया इसमें. उसके बाद में आगे फिर आ गया अपील बाय ए क्रेडिटर अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द लिक्विडेटर. तो विद इन 14 डेज ही कैन अपील टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी. NCLT के पास अपील जाएगी इसमें और T+81. इसके साथ में आपको फॉर्म नंबर भी चेक कर लेना चाहिए कि कौन सा फॉर्म नंबर है. फॉर्म नंबर भी कई बार पूछ लेते हैं. इवन दे आर आस्किंग अबाउट पार्ट्स ऑल्सो कि फॉर्म जैसे 5 है तो फॉर्म 5 का पार्ट A क्या कहता है, पार्ट B में क्या कौन सी डिटेल है, इस तरह से भी पूछते हैं. देन next step is preliminary report to the adjudicating authority that is to be submitted within 75 days of the liquidation commencement date. And we saw in detail regarding what are the contents of the preliminary report. Basically they are about the financial position of the company, T+75. Then asset memorandum also has to be prepared within 75 days of liquidation commencement date. Then quarterly progress reports are to be submitted within 15 days from the end of each quarter. So submission of progress report to adjudicating authority and asset sale report to be enclosed with every progress report if sales are made. So if sales are being made, then asset sale report also has to be included with every progress report. And at the end of the financial year, audited accounts of liquidators receipt and payment for the financial year. ठीक है, जो आपकी लास्ट क्वार्टर की रिपोर्ट होगी उसके साथ में आपके ऑडिटेड अकाउंट्स जाएंगे रिसीट एंड पेमेंट. ठीक है, 15 अप्रैल का
उसकी लास्ट डेट है. But if there is a change in between, liquidator is changed, then within 15 days from the cessation. ठीक है, जैसे मान लीजिए एक लिक्विडेटर है, वो 2 जुलाई को चेंज हो गया, तो 2 जुलाई से 15 दिन के अंदर उसको अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट दे देनी है. अदरवाइज अगर पूरा क्वार्टर उसने काम किया है तो 15 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर. ठीक है. उसके बाद है प्रोग्रेस रिपोर्ट इन केस ऑफ सेसेशन ऑफ लिक्विडेटर. ये विद इन 15 डेज ऑफ सेसेशन है. ठीक है, जो डेट ऑफ सेसेशन है प्लस 15 डेज, ये सब हम पहले भी पढ़ चुके हैं. उसके बाद में आता है इंफॉर्मेशन टू सिक्योर्ड क्रेडिटर. अब इसमें आपको क्या करना है कि विद इन 21 डेज ऑफ रिसीट ऑफ इंटीमेशन फ्रॉम सिक्योर्ड क्रेडिटर. इसमें क्या होगा भाई, सिक्योर्ड क्रेडिटर पहले तो वो अपना 30 दिन में बताएगा कि वेदर आई वांट टू एक्सरसाइज माय सिक्योरिटी और आई वांट टू गेट इट रिलिंक्विश्ड. अब ये विद इन 21 डेज जब उससे इंटीमेशन मिल गई सिक्योर्ड क्रेडिटर से, तो ही विल इन्फॉर्म द सिक्योर्ड क्रेडिटर. सिक्योर्ड क्रेडिटर मान लो बताए, वो वैल्यू भी बताता है सिक्योर्ड क्रेडिटर कि भैया ऐसा है, मेरे पास 50 करोड़ की सिक्योरिटी है. ठीक है, मैं इसको 40 करोड़ का ग्राहक है मेरे पास, मैं 40 करोड़ में इसको बेचूंगा. अब ये उसको बताएगा लिक्विडेटर. लिक्विडेटर क्या कहेगा, भैया ऐसा है 40 नहीं, मेरे पास तो 48 का ग्राहक है. ठीक है. उसके बाद में भी फिर टाइम दिया जाता है लिक्विडेटर को भी. ऐसा नहीं कि लिक्विडेटर के पास एंडलेस टाइम है. अगर लिक्विडेटर उसको नहीं बेच पाता विद इन स्पेसिफाइड पीरियड, तो उस केस में क्या है, अगर उसने जो 40 बताया था, मान लो सिक्योर्ड क्रेडिटर ने कहा था मैं 40 करोड़ में बेचूंगा, उसका 40 करोड़ ही क्लेम में से लेस हो जाएगा, चाहे वो एक्चुअली वो 37 में बिके लास्ट में. ठीक है, तो एक्चुअल से कोई मतलब नहीं, जितनी उसने वैल्यू डिक्लेयर की है उतनी वैल्यू उसकी लायबिलिटी में से कम हो जाएगी. ठीक है. उसके बाद में अगला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोसीड्स टू द स्टेक होल्डर्स. अब आपको ये करना है विद इन 90 डेज फ्रॉम द रिसीट ऑफ द अमाउंट. जब भी अमाउंट रिसीव होगा, अमाउंट कोई जरूरी नहीं है कि इकट्ठा रिसीव हो, अमाउंट में भी रिसीव्ड इन पीस मिल ऑल्सो. ठीक है ना. तो विद इन 90 डेज फ्रॉम द रिसीट ऑफ द अमाउंट यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रोसीड्स टू द स्टेक होल्डर्स आफ्टर डिडक्टिंग द लिक्विडेटर्स रिमनरेशन. है ना. तो डेट ऑफ रियलाइजेशन प्लस 90%. एंड एप्लीकेशन टू एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओनरस प्रॉपर्टी. So if there is any onerous property, we will deal with it in detail. If there is an application to adjudicating authority that has to be made regarding if you want to disclaim some onerous property in which the obligations are more than the expected realization, then you have to apply to the adjudicating authority within 6 months from the liquidation commencement date. Okay? Then notice to persons interested in the onerous property or contract. If somebody inquires about that onerous property, there may be some person, suppose there is a land in some remote village. A person may be interested in that property, although that property may not seem to be worth to the liquidator. But if a person has inquired, if he is interested in acquiring any such onerous property, then the liquidator is under obligation to give notice to persons interested in the onerous property or contract. And that has to be made at least 7 days before making an application to adjudicating authority for disclosure. And any person interested in the onerous property, he will inquire from the liquidator whether you want to disclaim. I have heard that you want to disclaim this onerous property. I am interested in it. Then before making an application to adjudicating authority for such disclaimer, the person who inquired in writing, he has to be notified at least 7 days before making an application. Then liquidation process, it will take within 1 year. Earlier this period was 2 years. And once the assets are liquidated, company is liquidated, then application is to be made to adjudicating authority for order of unclaimed proceeds of liquidation or undistributed assets. So before a dissolution order is made, an application is to be made to adjudicating authority regarding order on unclaimed proceeds of liquidation or undistributed assets, because there may be certain undistributed assets or there may be certain unclaimed proceeds. So person claimed, then he went abroad, or he died, or there was no trace, then an application will be made to the adjudicating authority. Then there is one schedule 1 also, that within 90 days of the date of invitation, time period, this is to time period to H1 bidder to provide balance sale consideration. ठीक. And there is no extension of this period. ठीक है. अगर आपने किसी जो H1 बिडर है उसको क्या है कि 25% तो इमीडिएटली जमा कराना होता है विद इन 3 डेज. ठीक है ना. और उसके बाद में फिर 90 डेज का उसको पीरियड रहता है
मैक्सिमम। उसके बाद में अगर नहीं जमा कराए तो दूसरे हाईएस्ट बिडर को भी दिया जा सकता है वो प्रॉपर्टी। उसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, पहले भी हमने ये चीज डिस्कस की थी। ये कुछ एब्रिविएशंस है, दिस यू कैन गो थ्रू। अब हमारा आता है लिक्विडेशन प्रोसेस। अब लिक्विडेशन प्रोसेस में देयर आर सर्टेन सिचुएशंस व्हिच वी कैन सी। सबसे पहली सिचुएशन क्या है कि सपोज देयर आर सम प्रोसीडिंग्स व्हिच आर पेंडिंग बिफोर द डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। ठीक है, अब डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल के पास कुछ प्रोसीडिंग चल रही है, लायबिलिटी अभी क्रिस्टलाइज नहीं हुई। ठीक है, कंपनी आ गई CIRP में। ठीक, उस केस में क्या होगा, उसमें ये है डिसीजन, ये है रेलेवेंट सेक्शन इसका 33 है कि भाई लेट द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी डिसाइड फर्स्ट इन CIRP। तो पहले CIRP वाले को कंटिन्यू हो, पर्टिकुलरली व्हेन द लायबिलिटी इज नॉट बीन क्रिस्टलाइज। इसका क्या है कि वो ना सोनी जी, वो जो केस डाइजेस्ट है ना, ये उसमें से है। वो केस डाइजेस्ट मेरे ऑफिस में रखी हुई थी, आज मैं ऑफिस गया नहीं एक्चुअली, तो इसीलिए वो रेलेवेंट केस लॉ में मैं इसमें डाल दूंगा, रेलेवेंट केस लॉ भी जो है। ठीक है जी, तो इस अगर मान लो DRT के पास कोई प्रोसीडिंग चल रही है, लायबिलिटी क्रिस्टलाइज नहीं हुई, उस केस में क्या करना है कि वो कहते हैं कि भाई पहले एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को डिसाइड करने दो, मतलब NCLT वाली प्रोसीडिंग चलने दो। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे। उसके बाद अगला क्या कहता है, ये कहता है कि लिक्विडेशन इज ए नेचुरल कॉन्सिक्वेंस अपॉन एक्सपायरी ऑफ टाइम फॉर CIRP। अब एक बार CIRP का पीरियड खत्म हो गया तो नेचुरली लिक्विडेशन विल प्रोसीड। ठीक है, तो लिक्विडेशन इज ए नेचुरल कॉन्सिक्वेंस। अगर आप CIRP में रेजोल्यूशन प्लान नहीं ले पाए, या जो रेजोल्यूशन प्लान है वो जो कंडीशंस हैं उसको मीट नहीं करता, ठीक है ना, तो या लिक्विडेट उसका कॉन्ट्रावेंशन हो जाता है, तो सारे केसेस में लिक्विडेशन इज द नेचुरल कॉन्सिक्वेंस। अब अगर मान लो COC ने रिजेक्ट कर दिया रेजोल्यूशन प्लान को, तो क्या एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अपना माइंड लगा सकती है कि भाई नहीं ये रिजेक्ट मत करो, इसको ऐसे कर लो वैसे कर लो? उसमें उन्होंने कहा कि दिस IBC इट वांट्स टू सेपरेट द जुडिशियल एस्पेक्ट्स फ्रॉम द कमर्शियल एस्पेक्ट्स। You leave the commercial wisdom to COC and you discuss only on the judicial aspects. So adjudicating authority is not expected to substitute its views with the commercial wisdom of professional experts. ठीक है भाई, ये भी प्रोफेशनल है, जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है, जो COC है वो भी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स हैं, दे आर द स्टेक होल्डर्स। ठीक है ना, नॉर इट शुड डील विद टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटी एंड मेरिट्स ऑफ रेजोल्यूशन प्लान। भाई आपने इसको फेवर कर दिया, इसको ऐसे दिया वैसे दिया, उतने जो COC के डिसीजंस को नॉर्मली दे विल नॉट बी क्वेश्चन। ठीक है, कमर्शियल विजडम ऑफ COC इज सुप्रीम अनलेस इट इज फाउंड कॉन्ट्रेरी टू एक्सप्रेस प्रोविजंस ऑफ लॉ एंड गोज अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट। अगर पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है या जो एक्सप्रेस प्रोविजंस ऑफ लॉ है सेक्शन 30 सेक्शन 60 वगैरह में, तभी दिक्कत है, अदरवाइज कोई दिक्कत इसमें नहीं है। उसके बाद अगला इसमें आता है, एक केस इसमें ऐसा भी आया कि भाई रेजोल्यूशन प्रोफेशनल वो लिक्विडेटर नहीं बनना चाहता था। ठीक है ना, तो रिक्वेस्ट ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान नॉट विलिंग टू एक्ट एज लिक्विडेटर ऑफ कॉर्पोरेटर वाज नॉट एक्सीडेड टू बाय द ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल ने इसको जबरदस्ती बना दिया लिक्विडेटर। ठीक है, ये चीजें पहले की हैं, बाद में तो खैर फॉर्म ही आ गया आपके पास कि आपको कंसेंट उससे लेनी है। ठीक है ना, तो कई बार क्या होता है, उनको लगता है यार इसने सारी चीजें समझी हुई हैं जो RP है। ठीक है, कंपनी में ज्यादा कुछ है नहीं, अब हम नया लिक्विडेटर बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सारी चीजें वो दोबारा अंडरस्टैंड करेगा। तो इस केस में क्या हुआ, उन्होंने कहा नहीं भाई आपको बनना पड़ेगा लिक्विडेटर। अब एक केस में क्या हुआ कि कोई बिजनेस में नहीं था, कोई एम्प्लॉय भी नहीं था, कोई रेजोल्यूशन प्लान में नहीं आया। ठीक है ना, तो इस केस में COC का जो डिसीजन था, COC ने कहा कि भाई जो आपका जो स्टैट्यूटरी टाइम पीरियड है 180 डेज, भाई हम 180 डेज तक क्यों वेट करें? ठीक है ना, तो डिसीजन ऑफ कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स टू लिक्विडेट द कॉर्पोरेट डेटर अर्लियर देन एक्सपायरी ऑफ स्टैट्यूटरी टाइम पीरियड वाज अपेंड। ठीक है, कोई बिजनेस नहीं है, कोई एम्प्लॉय नहीं है, कोई रेजोल्यूशन प्लान में नहीं आया, तो उस केस में उन्होंने कहा भाई COC अगर उसको जल्दी लिक्विडेट करना चाहती है, देखिए लिक्विडेशन भी एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है। सबसे पहली बात, नोबडी शुड पुश फॉर लिक्विडेशन। जैसे एक दो केसेस में हम पढ़ेंगे, वी विल स्टडी ऑन केस लॉज ऑन बिजनेस एंड प्रोफेशनल एथिक्स, कि RP शुड नॉट एट ऑल पुश फॉर लिक्विडेशन। अगर उसको लगता है, क्योंकि क्या है कि IBC का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स। ठीक है,
तो अगर कहीं पर भी ऐसा लगता है एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को कि somebody इज पुशिंग फॉर लिक्विडेशन, तो फिर उसके खिलाफ में एक्शन हो सकता है। लेकिन ये केस ऐसा था, इसमें कोई बिजनेस भी नहीं है, एम्प्लॉय भी नहीं है, रेजोल्यूशन प्लान भी नहीं है, उन्होंने कहा भाई जल्दी लिक्विडेट करो, तो ठीक है। उसके बाद में कॉर्पोरेट डेटर, अगला केस सिचुएशन इसमें ऐसे आई कि कॉर्पोरेट डेटर डायरेक्टेड टू बी लिक्विडेटेड ऑन द डिसीजन ऑफ द कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स टू लिक्विडेट, ठीक है। तो उस केस में ये प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 33(5) एंड 33(6) शैल अप्लाई। एक बार सेक्शन 33(5) और 6 को देख लेंगे। देखिए 33(5) क्या कहता है, सब्जेक्ट टू सेक्शन 52, व्हेन ए लिक्विडेशन ऑर्डर हैज बीन पास्ड, नो सूट और अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय और अगेंस्ट द कॉर्पोरेट डेटर, ठीक है, provided that a suit or other legal proceeding may be initiated by the liquidator on behalf of the corporate debtor with the prior approval of the adjudicating authority। तो जैसे CIRP में थोड़ा सिचुएशन डिफरेंट है। इन CIRP the if any suit or legal proceeding has to be done, it can be done by the corporate debtor itself, ठीक है। लेकिन लिक्विडेशन में once a liquidation order has been passed and if the liquidator decides टू फाइल ए सूट, उसके अगेंस्ट में तो फाइल हो नहीं सकता, लेकिन लिक्विडेटर तो फाइल कर सकता है ना। लिक्विडेटर अगर चाहे तो उसको क्या करना है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से पूछ करके पास करना है, ठीक है। दूसरा ये है कि सबसेक्शन 6 का कहता है 33 का, वही कहता है द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 5 शैल नॉट अप्लाई टू लीगल प्रोसीडिंग्स इन रिलेशन टू सच ट्रांजैक्शंस एज मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद एनी फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर, ठीक है। तो नोटिफाई कर सकते हैं कि भाई इनके लिए आपको, इन पर ये सबसेक्शन 5 अप्लाई नहीं होगा। बट नॉर्मली क्या है कि नॉर्मली ओनली द इट इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द लिक्विडेटर एंड लिक्विडेटर हैज टू डिसाइड। एक केस में ऐसा भी हुआ कि कंपनी ने कह दिया कि भाई यार लिक्विडेटर जो है आर्बिट्रेशन में नहीं गया, तो लिक्विडेटर ने बोला ऐसा जी आर्बिट्रेशन में हमें कोई फायदा ही नहीं था इसमें जाने से, तो इसीलिए तो डिसीजन ऑफ द लिक्विडेटर इज फाइनल, ठीक है। और ये क्या करेगा, ये एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से पूछ के चलता है विद प्रायर अप्रूवल ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। तो अब आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग इनिशिएटेड आफ्टर द लिक्विडेशन ऑर्डर वुड बी नॉन एस्टेंट लॉ। अगर मान लीजिए कोई, जैसे यहाँ पर भी मॉरेटोरियम का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, एक बार लिक्विडेशन लग गया, लिक्विडेशन शुरू हो गया, तो उसमें क्या है कि मॉरेटोरियम लग जाता है ऑन लीगल प्रोसीडिंग्स। तो उसमें क्या होगा कि इस केस में आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर दी, तो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स जो है वो आपकी इनिशिएट नहीं हो सकती, ठीक है, वंस ए लिक्विडेशन ऑर्डर इज पास्ड। और अगर ऐसी कोई हो भी गई है स्टार्ट, तो दे वुड बी नॉन एस्टेंट लॉ, वॉइड हो जाएंगे, ठीक है। तो एपेक्स कोर्ट सेट असाइड द ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज रिगार्डिंग आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग। कई बार क्या होता है कि हाई कोर्ट्स वगैरह या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अलाउ कर देते हैं, लेकिन एपेक्स कोर्ट ने इसको सेट असाइड कर दिया। उसके बाद में कई बार ये आता है सेक्शन 33 सबसेक्शन 5। सेक्शन 33 सबसेक्शन 5 का इसके ऊपर भी एक जजमेंट है कि जो कोर्ट जो है इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी इंक्लूड करता है फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 14A(1), ठीक है। तो इसमें एक्सेप्शंस क्या है, आर्टिकल 131 रिलेटिंग टू डिस्प्यूट बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226, ठीक है ना। तो ये इनका एक्सक्लूजन है। बाकी जो है कोर्ट में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी इंक्लूडेड है। इसका मतलब क्या हुआ कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी कोई प्रोसीडिंग नहीं चल सकती है, ठीक है, ये है इसमें। उसके बाद आ गया कि यहाँ पर जो है सेक्शन 33 सबसेक्शन 5 ये कहता है कि फ्रेश मोरेटोरियम विल स्टार्ट ऑन लिक्विडेशन ऑर्डर, ठीक है। तो एक तो मोरेटोरियम होता है हमारा CIRP में, और यहाँ पर होता है एक नया मोरेटोरियम स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, जैसे CIRP प्रोसेस हमारा एंड हुआ, मोरेटोरियम खत्म हो जाता है, यहाँ पर फिर दोबारा मोरेटोरियम लगेगा। फिर एक केस लॉ हमारा आता है इसमें सेक्शन 34 सबसेक्शन 4 पर। इसमें क्या हुआ कि एडवर्स रिमार्क्स अगेंस्ट द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल वर एक्सपल्ड, but the decision of the tribunal appointing another insolvency professional in place of RP was upheld, ठीक है। इस केस में क्या हुआ कि RP ने ही चैलेंज कर दिया। RP ने क्या कहा, RP ने कहा भाई एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास तो पावर ही नहीं है,
जैसे एनसीएलटी के पास पावर होती है, एनसीएलटी के पास पावर होती है ना भाई, आरपी को रिप्लेस कर सकते हो आप। इसने कहा जी आप, उसमें तो ये लिखा है कि भाई आरपी विल बी अपॉइंटेड इन कंसल्टेशन या एज पर द रिकमेंडेशंस ऑफ द बोर्ड। तो मतलब बोर्ड के पास पावर है रिप्लेसमेंट की, एनसीएलटी के पास तो पावर ही नहीं है। तो उन्होंने ये कहा कि भाई जो एनसीएलटी है इट इज शेयरिंग इट्स पैनल लिस्ट विद द बोर्ड, और ये जो शेयरिंग ऑफ पैनल है, जो आईबीबीआई अपना पैनल शेयर कर रहा है एनसीएलटी के साथ, उसको ही रिकमेंडेशन मान लिया जाए, क्योंकि पैनल में वही लोग आते हैं जो रिकमेंडेड होते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन जो कुछ एडवर्स रिमार्क्स थे ये तो इसमें एक्सपंज कर दिए सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन जो डिसीजन ये आईटीएटी ने, वो आईटीएटी कह रहा हूँ, ये जो अपीलेट ट्रिब्यूनल था, बट द डिसीजन ऑफ द ट्रिब्यूनल रिगार्डिंग अपॉइंटिंग अनदर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल वाज अपहेल्ड, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये जो शेयरिंग ऑफ पैनल है यही रिकमेंडेशंस मान ली जाएगी, ठीक है। इसने क्या कहा था, इसने ये कहा था कि आरपी कैन बी प्लेस्ड बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इन 2 केसेस, भाई या तो रेजोल्यूशन प्लान रिजेक्ट हो जाए या बोर्ड रिकमेंड। उन्होंने कहा भाई बोर्ड ने तो रिकमेंड किया नहीं, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने मुझे कैसे हटा दिया, ठीक है। तो इसमें डिसीजन ये आया कि भाई आप एनसीएलटी रिमूव कर सकता है, एनसीएलटी नया अपॉइंट कर सकता है, क्योंकि पैनल उसके पास है। तो बोर्ड से पूछने का यही मतलब है कि वो पैनल में से नाम ले लिया, वही रिकमेंडेशन। अगला फिर इसमें आता है ये है सेक्शन 35 सबसेक्शन 1, ठीक है ना। अब जो वाटरफॉल मैकेनिज्म है हमारा जो 53 में आता है, तो एज पर सेक्शन 53(1)(b) वर्कमैन आर प्लेस्ड एट पार विद सिक्योर्ड क्रेडिटर, ठीक है ना। वर्कमैन और सिक्योर्ड क्रेडिटर के पास पेरी पैसू है, ठीक है ना। सबसे पहले तो आपको लिक्विडेशन कॉस्ट देनी है, उसके बाद में फिर सेकंड नंबर पे ही आते हैं। तो और सेक्शन 35 सबसेक्शन 2 क्या कहता है, ये इट एम्पावर्स द लिक्विडेटर टू कंसल्ट एनी स्टेक होल्डर, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें एप्लीकेशन दी बाय द लिक्विडेटर कि भाई फॉर इंक्लूजन ऑफ वर्कमैन्स रिप्रेजेंटेटिव इन द मॉनिटरिंग कमेटी, ठीक है। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने भी इसको एग्री कर लिया, उन्होंने कहा दिया जितने मर्जी आप इंक्लूड कर लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अल्टीमेट डिसीजन तो लिक्विडेटर का ही होना है, ठीक है ना। रिकमेंडेशन तो किसी की भी बाइंडिंग नहीं है, ठीक। उसके बाद में अगला इसमें जो केस आया उसमें ये आया कि लिक्विडेटर कैन नॉट इंटरफियर विद सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ सिक्योर्ड क्रेडिटर अपॉन लिक्विडेशन ऑर्डर वंस द सिक्योर्ड क्रेडिटर मेक्स अ चॉइस टू सेल द सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑन इट्स ओन, ठीक है। भाई जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है उसके पास पूरी पावर है, ठीक है। लिक्विडेटर उसको चैलेंज नहीं कर सकता। सिक्योर्ड क्रेडिटर के पास डिसीजन है, सेक्शन 52 में वो डिसाइड करता है कि उसको अपनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट को एक्सरसाइज करना है या रिलिंक्विश करना है, ठीक है। लिक्विडेटर का क्या रोल है, लिक्विडेटर कैन वेरीफाई द अकाउंट and participate in the sale proceedings to safeguard interest of workmen and to see whether there is any surplus on sale। तो लिक्विडेटर चाहे तो सेल प्रोसीडिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकता है, वो देख सकता है कि भाई कोई सरप्लस आया क्या, ठीक है ना, और वेरीफाई भी कर सकता है अकाउंट को। लेकिन ये है कि ही कैन नॉट इंटरफियर, मतलब डिसीजन उसी का ही होगा, सिक्योर्ड क्रेडिटर का, ठीक है। उसके बाद में आता है कि लिक्विडेटर टू सीक क्लैरिफिकेशन बाय वे ऑफ फाइलिंग ए कंपनी एप्लीकेशन, ठीक है। ये 35 सबसेक्शन 1 कहता है। 35 सबसेक्शन 1 एक बार देख लेते हैं। ये कुछ इसकी पावर्स है सेक्शन 35 में। उसके बाद आगे देखते हैं। फिर यह है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सेक्शन 36 से रिलेटेड प्रोविजन है ये लिक्विडेशन एस्टेट से, कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैन नॉट क्लेम एनी प्रायोरिटी merely because of the fact that the order of attachment issued by it was long prior to the initiation of liquidation proceedings under the code, ठीक है। भाई लिक्विडेशन प्रोसीडिंग से पहले ही मान लो कोई अटैचमेंट ऑर्डर इशू हो गया, तब भी उसको वापस करनी पड़ेगी। ये लिक्विडेशन एस्टेट से रिलेटेड है ये। लिक्विडेशन एस्टेट में क्या कहता है, लिक्विडेशन एस्टेट में ये कहता है एनी एसेट्स सबसेक्शन 3 सेक्शन 36 सबसेक्शन 3 एनी एसेट्स ओवर विच द कॉर्पोरेट डेटर हैज ओनरशिप राइट्स, ठीक है। भाई अटैचमेंट के बाद भी क्या है, इसकी बुक्स में तो खड़े ही होते हैं ना कंपनी की बुक्स में, ठीक है। और बी में क्या कहता है,
36(3)(b) में assets that may or may not be in the possession of the corporate debtor including but not limited to encumbered assets। ठीक है, तो चाहे अटैचमेंट ऑर्डर हो, इशू भी हो गया हो, लिक्विडेशन से पहले भी इशू हो गया हो, तो भी वापस करना पड़ेगा, लिक्विडेशन एस्टेट का पार्ट बनेगा। ठीक है। 52 में क्या हुआ कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डज नॉट एंजॉय द स्टेटस ऑफ ए सिक्योर्ड क्रेडिटर। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोई सिक्योर्ड क्रेडिटर नहीं है। ठीक है, ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है, जैसे ऑपरेशनल क्रेडिटर्स है उसी की तरह से इसका क्लेम है, और इनके क्लेम कम भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द लिक्विडेशन वैल्यू। उसके बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैन नॉट क्लेम ए प्रायोरिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लियरेंस ऑफ टैक्स ड्यूज इन द इवेंट एनएसएससी कंपनी इज अंडर लिक्विडेशन। ठीक है, तो 53 में इनमें कोई प्रायोरिटी नहीं मिल सकती इनको। ठीक है ना, प्रायोरिटी इसलिए नहीं मिल सकती भाई जो प्रोविजंस है वही है। एक मिनट, हाँ जी, आगे चलते हैं। Amount due to the person whose rights are prejudicially affected on account of the moratorium is to be included in the insolvency resolution process cost। ठीक है भाई, हम सेक्शन 14 में क्या पढ़ते हैं, ये 53 भी उसी से रिलेटेड है, 14 से। 53 में क्या है, मिल रहा है सामान, ठीक है ना, इसमें पैसे मिल रहे हैं 53 में वाटरफॉल। अब मान लो कि भाई आप सेक्शन 14 क्या बात करता है, सेक्शन 14 या जो भी मोरेटोरियम लिक्विडेशन में भी लगेगा तो उसमें क्या होता है कि भाई कोई सूट फाइल नहीं हो सकता। अब आप मान लो कि किराए पर बिल्डिंग है, ठीक है, अब बिल्डिंग किराए पर है, ओनरशिप कंपनी की है, ठीक है, मान लो कोई किसी को आप किराया नहीं दे रहे, ठीक है, अगर किराया नहीं दे रहे, किराएदार क्या है, ना तो उसको पैसे मिल रहे ना वो सूट फाइल कर सकता, ठीक है, तो ऐसा आदमी क्या हो गया, ऐसा आदमी वो हो गया whose rights are prejudicially affected on account of the moratorium। ठीक है, तो जिसके ये इसमें केस लॉ है, ठीक है ना, मैं इसमें एक केस लॉ इंक्लूड कर दूंगा सभी में, ठीक है ना, जितने भी हैं सभी में आई विल मेक वन कॉलम फॉर केस लॉस। ये केस लॉ से ही निकाले हुए सारे। तो इस केस में क्या है कि अगर कोई आदमी ऐसा है whose rights are prejudicially affected on account of the moratorium, इसकी कॉस्ट को आपको इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट या लिक्विडेशन कॉस्ट में इंक्लूड करना है। ठीक है, इस केस में क्या हुआ कि रेंट वाज नॉट बीइंग पेड सिंस जनवरी 2017 और मोरेटोरियम ऑर्डर पास हो गया 31 अगस्त को, तो उसमें कहा कि लिक्विडेशन में हिज ड्यूज शैल बी इंक्लूडेड इन द इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट। ठीक है, उसके बाद में ये आता है कि एनी डिसीजन ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी रिलेटिंग टू द ग्रेच्युटी ट्रस्ट फंड शुड बी ट्रीटेड एज एन ऑब्जर्वेशन नॉट बाइंडिंग ऑन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, तो अब क्या होता है, ये जो ग्रेच्युटी ट्रस्ट फंड होता है, बहुत सारी कंपनीज हैं, फॉर पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी दे फॉर्म ए सेपरेट ट्रस्ट। ठीक है, एंड दैट ट्रस्ट नेचुरली इट इज नॉट ए कंपनीज प्रॉपर्टी। द proceeds of the trust every month a check is drawn from the company. Some of the directors even are common and this is a common practice in public sector undertaking। एक एनटीपीसी है मान लो, तो एनटीपीसी में क्या है, उन्होंने मान लो एक ट्रस्ट भी बना दिया, हर महीने वो क्या करेंगे, उसमें से कुछ अमाउंट ट्रस्ट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है भाई, ग्रेच्युटी तो दे रही है ना एम्प्लॉइज को, लेकिन वो क्या है, वो एक सेपरेट एंटिटी हो गई आपकी ग्रेच्युटी ट्रस्ट। एक मिनट, ये हमारे को सेक्शन जो 36 है वो भी सपोर्ट करता है। सेक्शन 36 क्या कहता है, 36(4) क्या कहता है, द फॉलोइंग शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द लिक्विडेशन एस्टेट एसेट्स एंड शैल नॉट बी यूज्ड फॉर रिकवरी इन द लिक्विडेशन एसेट्स ओन्ड बाय ए थर्ड पार्टी व्हिच आर इन पोजेशन ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर इंक्लूडिंग एसेट्स हेल्ड फॉर एनी थर्ड पार्टी, ऑल सम्स ड्यू टू एनी वर्कमैन और एम्प्लॉई फ्रॉम द प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड एंड दी ग्रेच्युटी फंड। ठीक है, तो अगर मान लीजिए उसके लिए कोई सेपरेट ट्रस्ट बना रखा तो उसके फंड्स जो है वो कंपनी के फंड्स नहीं है, नेचुरली। ठीक है, तो ग्रेच्युटी ट्रस्ट फंड वाज राइटली नॉट ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ लिक्विडेशन एस्टेट। ठीक है, मान लो उसमें कोई फ्रॉड हो गया, ठीक है, अब वो कई बार कहते हैं कि जी ये कंपनी के डायरेक्टर से फ्रॉड कर लिया, वो सेपरेट है। ठीक है ना, वो कहते हैं भाई आप अप्रोप्रिएट अथॉरिटी या कोर्ट के पास जाओ उस मैटर के लिए, इसका इस बात से कोई मतलब नहीं, उसको हम लिक्विडेशन एस्टेट में इंक्लूड नहीं करेंगे। सर ये बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है? बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट?
हाँ तो ऐसा ना जी, बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, मान लो किसी ने कोई चीज यहाँ कंपनी में दे रखी है। बेलमेंट क्या होती है? बेलमेंट और प्लेज में क्या फर्क है? प्लेज में तो बेसिकली अगेंस्ट सम मनी देते हो आप, ठीक है ना। बेलमेंट में तो क्या है, कोई आपके पास रख गया है कोई चीज, ठीक है भाई। मान लो कोई बेलमेंट में क्या होता है, मान लो एक दोस्त है आपका, वो दोस्त कहता है भाई ऐसा मैं फॉरेन कंट्री जा रहा हूँ, मेरी ये कार जो है आप रख लो, ठीक है, यूज भी करते रहना, कोई बात नहीं, चलाते रहना, गाड़ी चलती रही, कोई दिक्कत नहीं, ये बेलमेंट है। बेलमेंट इज नॉर्मली, इट में बी ग्रेचुटस बेलमेंट, इट में बी अगेंस्ट सम कंपेंसेशन ऑल्सो, ठीक है ना। तो बेलमेंट और प्लेज ये रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। तो बेलमेंट मतलब यही है कि पोजेशन इज बीइंग ट्रांसफर्ड एट टाइम्स विदाउट कंसिडरेशन, नॉर्मली विदाउट कंसिडरेशन, ये होती है बेलमेंट। तो कंपनी के केस में अगर हम एनविसेज करेंगे तो कंपनी के केस में मान लो कि कोई दूसरी कंपनी है, मान लीजिए दो कंपनियां साथ साथ में हैं, ठीक है ना। तो उसने क्या है, उसको अलाउ कर रखा है, मान लीजिए वहां कोई प्ले स्कूल है कि भाई ठीक है ये जो है प्ले स्कूल, ये हमारा कंपाउंड भी आप यूज कर लो, तो उस टाइप की चीजें बेलमेंट है, ठीक है। कोई बाउंड्री नहीं है, मान लो बाउंड्री हटा रखी है दोनों के बीच में। इसी तरह से हम कुछ सिचुएशन एनविसेज कर सकते हैं। थैंक यू। उसके बाद में क्या है जी, ये जो फाइलिंग ऑफ फॉर्म्स है इन द रजिस्ट्री बाय द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल और रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंटेड अंडर द लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट, इसमें क्या है, ये कुछ कंप्लायंसेस के बारे में इन्होंने बताया है कि एमसीए की साइट पर कैसे आपको स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस करनी है, जो सीआईआरपी प्रोसेस में या लिक्विडेशन प्रोसेस में, ये आप देख सकते हैं, इसमें खास बात नहीं है, आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास कुछ पॉइंट्स आते हैं। वैसे ये जितनी भी पीपीटी थी ना मेरी, वही है सारी, सिर्फ मैंने एक पेज की एडिशन की, ये वाला, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं, क्योंकि देखो अगर हमें केस स्टडी डिस्कस करनी है, केस स्टडी क्रैक करनी है, तो हमें पता होना चाहिए भाई क्या क्या कहाँ प्रॉब्लम्स आ सकती है। सबसे पहले तो कंट्रीब्यूशन टू लिक्विडेशन कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन टू लिक्विडेशन कॉस्ट क्या होता है, एक एक को देख लेते हैं, ठीक है। ये कंट्रीब्यूशन टू लिक्विडेशन कॉस्ट, अब सीओसी ने अप्रूव नहीं किया प्लान को, ठीक है, तो लिक्विडेटर सबसे पहले ये देखेगा कि भाई ऐसा है, कहीं ऐसा ना हो मेरे को फीस ना मिले। लिक्विडेटर शेल कॉल अपॉन दी फाइनेंशियल क्रेडिटर, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, मतलब दो कैटेगरी के इसमें फाइनेंशियल क्रेडिटर होंगे, कुछ तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होंगे, कुछ नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होंगे। तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ना, उसको कहेगा यार ये अमीर लोग हैं, इनको कहेगा भाई तुम पैसे मिलाओ, तुम पैसे इसीलिए मिलाओ, तुम्हें बाद में मिल जाएंगे, अभी कंपनी के पास कुछ है नहीं, कंपनी के एसेट्स बिकने वाले हैं, जब बिकेंगे सबसे पहले तुम्हें मिल जाएगा। टू कंट्रीब्यूट द एक्सेस ऑफ लिक्विडेशन कॉस्ट ओवर द लिक्विड एसेट्स, ठीक है भाई, लिक्विडेशन कॉस्ट इतनी है और जो कंपनी के पास लिक्विड एसेट्स हैं वो इतने हैं, ठीक है। लिक्विडेशन कॉस्ट मान लो आ रही 5 करोड़ और कंपनी के लिक्विड एसेट्स हैं 4 करोड़ के, तो बाकी जो 1 करोड़ है वो आप मिला दो, ठीक है, as estimated by him in proportion to the financial debts owed to them by the corporate। जिस प्रोपोर्शन में तुम्हारे डेट ड्यू है ना, उसी में मिला लो, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पे क्वेश्चन भी पूछ सकता है। एज्यूम, केस स्टडी में भी इंक्लूड कर सकता है इसको। एज्यूम दैट द एक्सेस ऑफ लिक्विडेशन कॉस्ट ओवर लिक्विड एसेट्स इज 10, ठीक है भाई, लिक्विडेशन उसमें 10 का शॉर्टफॉल आ रहा है एज एस्टिमेटेड बाय द लिक्विडेटर। तो फाइनेंशियल क्रेडिटर जो है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्हीं को ही देना पड़ेगा। मान लो 4 जने हैं, ठीक है ना। अब इसमें क्या हो रहा है, ये जो है जैसे ये 2 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ए और बी, और ये नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, और इनका डेट ड्यू कितना है, 40 और 60। तो 40 और 60 जो ड्यू है इनको मिलेगा जब, तो 40 और 60 की रेशियो में ही मिलेगा ना। तो ये कह रहा है भाई 10 की कमी पड़ रही है, तो 10 की कमी तुम 40 और 60 की रेशियो में मिला दो, तो कहेगा 4 तुम लाओ भाई, 6 तुम लाओ, ये चीज है। ये होता है कंट्रीब्यूशन टू लिक्विडेशन कॉस्ट, और ये जो आपकी लिक्विडेशन प्रोसेस कॉस्ट है उसका पार्ट बन जाता है। सबसे पहले इनको पेमेंट होती है, इस पर इंटरेस्ट भी मिलता है इनको। ये जो कंट्रीब्यूशंस हैं मेड अंडर द प्लान अप्रूव्ड, ये क्या है, दिस शैल बी डिपॉजिटेड इन ए डेजिग्नेटेड एस्क्रो अकाउंट। ये एक वो कहेगा भैया ये तुम जो है एक एस्क्रो अकाउंट में मेंटेन कर दो विद इन 7 days ऑफ द पासिंग ऑफ द लिक्विडेशन ऑर्डर। क्योंकि देखो जब तक लिक्विडेशन प्रोसेस कॉस्ट नहीं पूरी होगी ना, तब तक तो आगे चल ही नहीं सकता ना कहानी, ये चीज। एंड द अमाउंट कंट्रीब्यूटेड इट शैल बी रीपेबल विद इंटरेस्ट एट ए बैंक रेट रेफर टू सेक्शन 49 ऑफ द आरबीआई एक्ट एज पार्ट ऑफ लिक्विडेशन कॉस्ट। तो सबसे पहले यही इसकी पेमेंट होगी, तो इट विल बिकम पार्ट ऑफ लिक्विडेशन कॉस्ट, ठीक है।
उसके बाद में दूसरा पॉइंट जो आता है वो आता है जी रिगार्डिंग कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट, इस पे कुछ क्वेश्चन है किसी का? कोई पूछ सकते हैं, पूछना चाहे तो। सर इसमें जो लिक्विडेशन कॉस्ट में अगर वो शॉर्टफॉल आती है, ओनली लिक्विडेशन कॉस्ट को कंट्रीब्यूट करेगा ना जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ। ओनली मतलब वो लिक्विडेशन कॉस्ट में जो लिक्विडेटर के एक्सपेंसेस है, मतलब नॉट द नहीं 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 नहीं, लिक्विडेशन कॉस्ट की डेफिनेशन है। लिक्विडेशन कॉस्ट में लिक्विडेटर की रिमनरेशन है, लिक्विडेटर ने जो प्रोफेशनल्स अपॉइंट किए उनकी कॉस्ट है, वो सारी चीजें हैं। लिक्विडेशन कॉस्ट की डेफिनेशन है बाकायदा। तो लिक्विडेशन कॉस्ट में जो भी पार्ट आते हैं वो सारे उसी के लिए वो एसेस कर लेगा ना, एस्टिमेट होता है ये बेसिकली। भाई लिक्विडेशन में लिक्विडेशन की कॉस्ट उसका एक एस्टिमेट होता है, तो उस एस्टिमेट के बेस पे होगा ये। ठीक है, और अगर वो एस्टिमेशन मतलब शॉर्टफॉल अगर एक्सेस बच गया मनी तो फिर दोबारा वापसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को मिल जाएगा उनका नेचुरली। हाँ हाँ, वो तो मिल ही जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। एस्टिमेट तो पहले करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि अभी तो चल ही नहीं रही गाड़ी ना आगे। अब उसको लग रहा है यार मेरे पैसे नहीं मिलेंगे, लिक्विडेशन कॉस्ट नहीं मिलेगी, तो फिर क्या फायदा चलाने से आगे। अब तो जो वाटरफॉल मैकेनिज्म आएगा उसके अंदर हाँ 53 में, हाँ। सबसे पहले 53 में उसको मिल जाएंगे। अगर कुछ एक्सेस बचता है तो सबसे पहले तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को मिल जाएंगे जिसने कंट्रीब्यूट किया है। नेचुरली नेचुरली, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। तो ये टॉप ये देखो ना जी, ये देखिए आपका सेक्शन 5 सबसेक्शन 16 लिक्विडेशन कॉस्ट। तो लिक्विडेशन कॉस्ट मींस any cost incurred by the liquidator during the period of liquidation subject to such regulations as may be specified by the board। तो जो लिक्विडेशन प्रोसेस हमारे रेगुलेशंस है उसमें लिक्विडेशन प्रोसेस कॉस्ट की डेफिनेशन दे रखी है कि उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा पार्ट है जी सर ये टॉप, हाँ जी, प्रायोरिटी कहाँ आ गई इसकी? प्रायोरिटी सबसे पहले 53 में, सबसे पहले नंबर पे 53 में है ना। हाँ भाई ऐसे है, वो क्या करेगा, एक तो लिक्विडेशन कॉस्ट को एसेस कर लेगा। लिक्विडेशन कॉस्ट हमारे रेगुलेशन में डिफाइंड है, ठीक है। और दूसरी तरफ देखने का भाई लिक्विड एसेट्स कितने हैं। भाई अभी बेचे तो नहीं ना प्रॉपर्टी, तो अभी तो देखिएगा लिक्विड एसेट्स कितने हैं। उसमें अगर कोई शॉर्टफॉल है, हो सकता है शॉर्टफॉल ना ही हो। अगर शॉर्टफॉल नहीं होगा फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर शॉर्टफॉल होगा तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को बोलेगा, नॉन फाइनेंशियल को नहीं बोलेगा। अब इसमें आपके पास कई क्वेश्चन आ सकते हैं, भाई कोई मान लो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो ही ना, तो क्या होगा? ठीक है ना। यस, तो एजुकेटिंग अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ी। नहीं, एजुकेटिंग अथॉरिटी से है, जो भी फाइनेंशियल क्रेडिटर्स होंगे उसी से लेगा फिर, और क्या करेगा। वो रेगुलेशंस में थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, इसको, इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे ग्रुप में, ठीक है। भाई ऐसा भी तो हो सकता है ना। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है जी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोगे आप, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल से नहीं लोगे। अगर मान लो कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ही नहीं, बैंकर है ही नहीं कोई, या कोई ऐसी भी कंपनी हो सकती है जिसमें कोई डेट फ्री कंपनी हो, उसमें खाली ऑपरेशनल क्रेडिटर ही हो, उसमें क्या करोगे, है नहीं। ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे सभी लोग मिलकर, मुझे भी नहीं पता। आगे चलते हैं। अब दूसरा पॉइंट है जी इसमें, कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पार्क कर देते हैं, वी विल स्टडी इन डिटेल एंड गेट बैक टू इट टुमारो इन द ग्रुप। दूसरा पॉइंट है कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट। कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट क्या है कि देखिए, लिक्विडेशन में सबसे पहले 90 डेज तक एक ऑप्शन एक्सप्लोर की जाती है, सेक्शन 230 ऑफ द कंपनीज एक्ट है रिगार्डिंग कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट, कि भाई अब लिक्विडेशन ऑर्डर तो पास हो गया, लेकिन लिक्विडेशन में भी देख लो अगर कोई कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट हो सकता है। कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट की स्कीम क्या है 230 में, भाई क्रेडिटर्स जो है विद, जो सिक्योर्ड क्रेडिटर है नॉर्मली विद 75% मेजोरिटी, वो एक स्कीम लेके आते हैं। वो स्कीम लेके उसे अप्रूव कराते हैं एनसीएलटी से कि लो जी हम इतना कम लेने को राजी हैं, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज, नेचुरली कॉम्प्रोमाइज का यही मतलब है कि भाई इस तरह से हम कुछ कम लेने को राजी हैं और हमारी स्कीम अप्रूव कर दो। उससे क्या है, एसेट्स बेचने नहीं पड़ेंगे, वो कंपनी चल जाएगी फिर दोबारा, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम, इसका पर्पस क्या है कि मैक्सिमाइजेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर। कोई ऐसा तो है नहीं कि बेच बाच के लोगों के पैसे दे देने, ये पर्पस नहीं है आईबीसी का। तो वो ये कहते हैं भाई पहले 90 डेज तक आप इस चीज को एक्सप्लोर कर लो। ये है रिगार्डिंग कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट। इसमें होता क्या है कि अगर जहां पर भी कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट है, इट शैल बी कंप्लीटेड विद इन 90 डेज। ये कहता है भाई पहले के 90 डेज तो हम इसमें दे देंगे,
और ये जो 90 डेज है ना, ये आपके 365 में इंक्लूड नहीं होंगे, ठीक है। तो इस पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भैया ये जो है, अगर ये 90 डेज जो है ये क्या 365 में इंक्लूड होंगे, या अगर कोई कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट की स्कीम प्रपोज्ड है तो उस केस में लिक्विडेशन पीरियड क्या होगा, ठीक है। अब दूसरी बात आती है कि इसकी जो कॉस्ट होगी वो कौन बियर करेगा, ठीक है। अब इसमें अगर जो सक्सेसफुल हो जाती है, सैंक्शन हो जाती है स्कीम कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट की, उस केस में तो कंपनी बियर कर लेगी। और अगर ये स्कीम सैंक्शन नहीं होती ट्रिब्यूनल से, तो जो एप्लीकेंट है, मान लो क्रेडिटर ने एप्लीकेशन लगाई थी, तो क्रेडिटर्स विल बियर द कॉस्ट, और ये लिक्विडेशन प्रोसेस कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगी, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट सच कॉस्ट शैल बी बोर्न बाय द पार्टीज हु प्रपोज्ड कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट वेयर सच कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट इज नॉट सैंक्शनड बाय द ट्रिब्यूनल। तो भाई दो ही चीजें होगी, स्कीम लाएं या तो सैंक्शन होगी या नहीं होगी। अगर सैंक्शन हो जाएगी तो कंपनी बियर कर लेगी, अगर सैंक्शन नहीं होगी तो जो पार्टीज हैं वो बियर कर लेंगे जिन्होंने प्रपोज किया था, ठीक है। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन 230 पर? नो सर। उसके बाद आगे चलते हैं। तीसरा है जी इसमें इंडिपेंडेंस ऑफ लिक्विडेटर। अब इंडिपेंडेंस ऑफ लिक्विडेटर में देखिए जनरल सी चीजें हैं कि ये होना चाहिए भाई, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट हो सकता हो, ये वो। एक जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसमें ये कि लीगल या कंसल्टिंग फर्म दैट हैज और हैड एनी ट्रांजैक्शन विद द कॉर्पोरेट डेटर कंट्रीब्यूटिंग 10% और मोर ऑफ द ग्रॉस टर्नओवर ऑफ सच फर्म इन द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स, ठीक है। तो 10% आपको कैलकुलेट करना है ऑफ द ग्रॉस टर्नओवर। तो आपकी एक कंपनी है, ठीक है, हैज नॉट बीन एन एम्प्लॉय और प्रोप्राइटर और ए पार्टनर, ठीक है। आप एम्प्लॉय भी नहीं होने चाहिए उस फर्म के, ठीक है। कोई एक लीगल फर्म है उसके आप एम्प्लॉय हो तो भी आप नहीं हो सकते इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉइंट, ठीक है। एम्प्लॉय हो, प्रोप्राइटर हो या पार्टनर हो किसी ऐसी फर्म के जिसका लिक्विडेशन चल रहा है। आपकी टोटल टर्नओवर है मान लीजिए 50 करोड़, ठीक है, और 50 करोड़ में और जो वो कंपनी है जिसका लिक्विडेशन हो रहा है उसकी टर्नओवर है मान लो 100 करोड़, ठीक है। तो इसका मतलब 10 आपका 50% तो उसी कंपनी से आ रहा है। तो अगर 10% से आपका ज़्यादा टर्नओवर उसी कंपनी से आ रहा है जो कि कंपनी लिक्विडेशन में जा रही है, ठीक है, तो उस केस में आप अपॉइंट नहीं हो सकते। An insolvency professional shall be eligible to be appointed as a liquidator if he and every partner or director of the insolvency professional entity of which he is a partner or director is independent, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट कब माना जाएगा, ठीक है, अगर आप एम्प्लॉय या प्रोप्राइटर या पार्टनर नहीं हो तो 10%। सर मेरे ख्याल से 5% है वो शायद, मुझे नहीं, ऐसा लग रहा है। हाँ इसमें ना, हाँ CIRP में तो 10, CIRP में है 5%। हाँ बिल्कुल ठीक है जी। पूजा गोयल जी आपने बचा लिया मेरे को, CIRP में 5% है, यहाँ पर 10% है, इसीलिए मैंने इसको इंक्लूड किया था इसमें, ठीक है ना। पहले वहां भी 10 था, बाद में 5 कर दिया था, इसीलिए थोड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट है। आप फिर भी एक बार चेक कर लीजिएगा, तो ऐसा ही लगता है मुझे। ये जो रेगुलेशंस में दिया हुआ है, ठीक है ना। सर सब में 10 है सिवाय CIRP, उसमें 5। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं लेकिन मैं हाँ? बात कर रहा हूँ सर सेक्शन 230 की। 230 में 5% है सेक्शन 230 कंपनी एक्ट। नहीं, कंपनी एक्ट से हमें क्या करना है, हम नहीं तो वो अभी IBC बात पढ़ कर रहे रहे थे ना अमेलगेशन और उसकी। नहीं, वो अलग चीज है जी। वो जो 230 है ना वो अलग चीज। अब हम 230 थोड़ी डिस्कस कर रहे हैं, अब तो हम इंडिपेंडेंस ऑफ लिक्विडेटर डिस्कस कर रहे हैं। वो पॉइंट चला गया, ये तीसरा पॉइंट है, अलग है ये। ठीक। सर इसमें जो ये लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर है, ये ऑडिटर्स पे भी एप्लीकेबल है ना, इस सेम पॉइंट में? हाँ बिल्कुल है, वो लिखा तो है, ऑफ ए फर्म ऑफ ऑडिटर और सेक्रेटरियल ऑडिटर और कॉस्ट ऑडिटर जी नहीं, ये कंसल्टेंट बी के साथ दिया हुआ था ना सर, इन द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स। थोड़ा सा कंफ्यूजन था। एक बार इसको ना एक बार इसको जो रेलेवेंट रेगुलेशन है, रेगुलेशन से चेक कर लेते हैं। सर वो सेम लिखा है रेगुलेशन में भी। आप रेगुलेशन का मुझे पेज नंबर बता सकते हैं, 1 मिनट? हाँ सर,
सर पेज 471 सर रेगुलेशन 8 है ये। अच्छा एक मिनट, थैंक यू। 471 अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ लिक्विडेटर सर रेगुलेशन 6 सर पेज अलग अलग हो सकते हैं बुक। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चैप्टर 2 का थर्ड नंबर रेगुलेशन है। चैप्टर 2 का, अच्छा एक मिनट, ठीक है। ये लिक्विडेशन प्रोसेस आ गया, चैप्टर 2 का। नहीं सर चैप्टर 3 है ये। नहीं चैप्टर 2 ही है, बिल्कुल ठीक बात तो कर रहे हैं। चैप्टर 2 का पॉइंट नंबर 3 है। चैप्टर 2 का पॉइंट सर मैं रेगुलेशंस में देख रही थी। मैं भी रेगुलेशन में ही हूँ, लिक्विडेशन प्रोसेस रेगुलेशंस में, एलिजिबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट एज लिक्विडेटर। हाँ जी सर मेरे चैप्टर 3 हाँ आ रहे हैं। नहीं कोई पता नहीं क्यों आ रहा है। कमर्शियल वाला है आपके पास, कौन सा है? सर मेरे पास टैक्समेंट है। अब आप ये देखो ना, ये जो मैंने लिखा नहीं, ये जो पीपीटी चल रही है ना, ये रेगुलेशंस का ही एक्सट्रैक्ट है, ये रेगुलेशन से ही ली गई है। जी तो सर जी सर। ये चैप्टर 2 मेरा भी दिमाग नहीं चला, नया जी ने बताया मुझे, ये चैप्टर 2 तो यही लिखा हुआ था। तो ये चैप्टर 2 का पॉइंट नंबर 3 है। पॉइंट नंबर भी मैंने सेम डाल दिया इसमें। लेकिन ये जो आपकी बात है, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। ये जो इन द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर दोनों के साथ है, ये ऑडिटर के साथ भी है और इसके साथ भी है। ये गलती इसमें ये कर दिया कि इसको यहाँ कर दिया, हाँ साथ में लिख दिया। ये क्या करते हैं मैडम, ये हम लोग क्या करते हैं भाई, रेगुलेशन से उठाते हैं इसको और पीडीएफ को फिर पीपीटी में कन्वर्ट कर देते हैं। नहीं सर आपका तो ठीक है सर, रेगुलेशन में भी गलती लिखा हुआ है, उसी तरीके से लिखा हुआ है। अच्छा ये हो सकता है, ये हो सकता है। हाँ इसीलिए आपने भी ऐसे ही उठाया है, इसीलिए हाँ बिल्कुल बिल्कुल वहाँ पर बिल्कुल। भी ऐसे ही लिखा है। हाँ मेरे तो कोई गलती हो जाती है, मैं लड़कों के ऊपर डाल देता हूँ, टाइपिंग एरर हो गई होगी। लेकिन ये जो कमर्शियल वाली बुक है ना, इसमें ठीक लिखा हुआ है। इसमें इन द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर दोनों के साथ अलग लिखा हुआ है, अलग अलग लिखा हुआ है। ओके सर आगे चलते हैं। लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपने। अगला क्वेश्चन आ सकता है इसमें कि भाई आपको ये जो है प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड्स, ठीक है, तो प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड्स कितने पीरियड के लिए रखना है? आपको 8 इयर्स के लिए रखना है आफ्टर द डिसोल्यूशन, ठीक है। तो डिसोल्यूशन की डेट, अगर वो मान लो 2 डेट आपको दे दे, एक दे देगा आपको लिक्विडेशन की, एक दे देगा डिसोल्यूशन की, तो डिसोल्यूशन से आपको ये देखना है पीरियड, ठीक है। डिसोल्यूशन से आपको 8 साल तक रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं। The liquidator shall maintain the following registered books and shall preserve them for a period of 8 years after the dissolution of the corporate debtor। तो मेन पॉइंट जो है ये ध्यान रखिए कि आफ्टर द डिसोल्यूशन है 8 इयर्स। उसके बाद अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोऑपरेशन पे, कोऑपरेशन जैसे हमें पता है ये सेक्शन 19 है, दोनों में वही है, ठीक है, इसमें भी वही है और उसमें भी वही है। मान लो केस स्टडी ऐसे बना सकता है कि भाई कोई बंदा कोऑपरेट नहीं कर रहा, तो लेकिन लिक्विडेटर ने क्या किया, सीधा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास पहुंच गया, ठीक है। क्वेश्चन था पीरियड के ऊपर। हाँ हाँ जी हाँ जी। 8 ईयर का मतलब जो लिक्विडेशन के रिकॉर्ड्स होंगे उसको 8 साल तक मेंटेन करना है, मतलब जो कंपनी के रिकॉर्ड्स होंगे पुराने लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट से, उसको तो नहीं मेंटेन करना ना। नहीं वही देखो तो जी, बात है। वही ऐसा नहीं, रिकॉर्ड लिखे हुए ना, कैश बुक, लेजर और कैश बुक आफ्टर द लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट, नॉट प्रायर टू दैट। नेचुरली नहीं सर, वो ऐसा है ना, देखिए ऐसे है, ये जो लिक्विडेटर अपने मेंटेन करेगा, कैश बुक मेंटेन करेगा, लेजर, और नेचुरली होंगे तो कंपनी के ही ना वो, और किसके रिकॉर्ड होंगे? नहीं कंपनी के पुराने लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट से पुराने भी कैश बुक, लेजर वगैरह सब चीजें होंगी ना उनकी तो। हाँ वो ठीक है, लेकिन ये है कि ये इनकी बात करता है कि इनको मेंटेन करना है आपको, ये जो रिकॉर्ड है ना, इन्हीं को 8 साल तक मेंटेन करना है। रेगुलेशन में लिखा है द लिक्विडेटर शैल मेंटेन द फॉलोइंग रजिस्टर्स एंड बुक्स इन रिलेशन एंड शैल प्रिजर्व देम फॉर ए पीरियड ऑफ, जो इसने बनाई है ये बनाएगा, ये इनको मेंटेन करेगा। उससे पुराने पीरियड उसको पुराने के पीरियड, उसके लिए 3 साल का पीरियड है, उसके लिए 3 साल का पीरियड अलग से प्रेस्क्राइब्ड है। वो 3 साल का पीरियड मैं आपको बता दूंगा कहां पर आता है। तो रायजादा जी आप म्यूट कर लीजिए अपने को, और उसके बाद स्टैम्प पेपर खरीद के बस रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हाँ रह जाएगा। सुरेंद्र रायजादा जी म्यूट कर लीजिए अपने को प्लीज। उसमें सिर्फ एक एक्शन नहीं हो पाया कि पायल के सिग्नेचर और ओएसडी या ओएसडी के बिहाफ पे जिसे करना है वो नहीं, अगर वो हो जाते। चलो जी हाँ जी,
ठीक है जी। तो ये जो 8 साल तक मेंटेन करना ना, ये वाले रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं और नेचुरली यही मेंटेन करने और इन्हीं को प्रिजर्व करना। हाँ, लिखा हुआ यहाँ सर, पर इसकी बात है। इन रिलेशन टू द लिक्विडेशन, इन यस यस, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ओके। ठीक है जी, आगे चलते हैं। भाई पता मुझे भी कुछ नहीं है, मैं भी पीपीटी से ही पढ़ता हूँ और कई बार क्या होता है, पढ़ते पढ़ते ही ध्यान आती है यार ये भी चीज लिखी हुई है इसमें, तो नेचुरली अब सिर्फ यही है, हम जो ग्रुप चला रहे हैं ना उसका पर्पस सिर्फ इतना ही है कि मोटिवेशन ग्रुप, मोटिवेशन मिलता है, सब लोग मिलजुल के पढ़ लेते हैं, पास हो जाते हैं, एक एम्पावरमेंट हो रही है प्रोफेशनल्स की। और इसी देखो काम में हमारे 200-300 लोग बन चुके इसी प्रोसेस में। तो मेन चीज अपना वो रहती है, ये नहीं कि मुझे कुछ ज्यादा पता है, मुझे भी आप हो सकता है आपसे भी कम पता हो, क्योंकि आप तो पढ़ते रहते हो, मैं तो इसी टाइम पढ़ता हूँ जब पीपीटी मेरे सामने आती है, बस ये है। अगला इसमें आता है जी रिगार्डिंग कोऑपरेशन। तो कोऑपरेशन की जहां तक बात है तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी जो है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को आपको अप्रोच करना है, वो सेक्शन 19 में, यहाँ पर भी सेक्शन 19 वाली एप्लीकेशन लगेगी। अगर लिक्विडेटर लगाएगा ना तो ये भी सेक्शन 19 की एप्लीकेशन लगाएगा। नेहा केडिया जी अपने को म्यूट कर लीजिए। तो भाई या तो फिर मैं सबको म्यूट कर दूंगा, ऐसा ना दिक्कत आती है। इसमें क्या होगा कि एन एप्लीकेशन में बी मेड अंडर दिस रेगुलेशन ओनली आफ्टर द लिक्विडेटर हैज मेड रीजनेबल एफर्ट्स टू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन फ्रॉम सच पर्सन एंड फेल टू ऑब्टेन। ठीक है, पहले खुद मांग के देखो, ऐसा नहीं कि आपने कुछ एफर्ट्स तो किए नहीं और आप जो है सीधा वहां पर पहुंच गए, क्योंकि एनसीएलटी भी डांटती है लिक्विडेटर या आरपी को कि भाई तुमने क्या एफर्ट किया। अब वो कहते हैं कि भाई ठीक है, यहाँ पर जो है लैंड वगैरह में ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि भाई आपने रेवेन्यू ऑफिसर को अप्रोच किया, आपने जो रजिस्ट्रार को अप्रोच किया, आपने लैंड के लिए जो है मान लो जो रेवेन्यू ऑफिसर है या कोर्ट वो वहाँ पर जो रजिस्ट्रार ऑफिस में है वहाँ से लैंड की मार्किंग के लिए आपने अगर कस्टडी लेनी थी तो कस्टडी में, फिजिकल कस्टडी में बाउंड्री तो बना नहीं लोगे, लैंड है, एग्रीकल्चरल लैंड है, ठीक है ना। लेकिन आप ईयर मार्किंग के लिए आपको रेवेन्यू ऑफिसर्स को अप्रोच करना चाहिए था। ये नहीं कि आप सीधे ही वहाँ पहुँच गए कि जी हमें ऑर्डर दे दो उनके अगेंस्ट में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सीक इन्फॉर्मेशन, अगर नहीं मिले तभी यहाँ एप्लीकेशन लगानी है। उसके बाद में आता है डिस्क्लेमर ऑफ ओनरस प्रॉपर्टी। ये एक इंपॉर्टेंट रेगुलेशन है, इसको थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इसमें क्या है, कोई भी मान लो ओनरस प्रॉपर्टी है। ओनरस प्रॉपर्टी होती क्या है, ओनरस प्रॉपर्टी वो होती है जिसमें देना ज्यादा लेना कम है। ठीक है, तो अगर कोई लैंड है बेसिकली उसमें कोई ओनरस कोवेनेंट्स है, ठीक है, कोई प्रॉमिस, कोवेनेंट क्या होता है, प्रॉमिस, ठीक है, या शेयर्स या स्टॉक है कंपनीज के, या एनी अदर प्रॉपर्टी है जो सेलेबल नहीं है या रेडिली सेलेबल नहीं है, बाय रीजन ऑफ द पोजेसर देयर ऑफ बीइंग बाउंड आइदर टू द परफॉर्मेंस ऑफ एनी ओनरस एक्ट और टू द पेमेंट ऑफ एनी सम। उसको पता है यार ये मिलाना तो इसमें कुछ नहीं और इसमें प्रॉब्लम ही है, पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे, तो उसको क्या करता, वो चाहता मैं डिस्क्लेम कर दूं भाई मुझे, क्योंकि बैलेंस शीट में है वो प्रॉपर्टी। ठीक है, या कोई अनप्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट, मान लो कोई प्रोजेक्ट चल रहा है तो प्रोजेक्ट में मान लो उसको वहां से अगर मशीनरी उठाएगा भी तो उसकी स्क्रैप वैल्यू भी उतनी नहीं आएगी जितने कि उसको सफाई करने का खर्चा हो जाएगा। तो लिक्विडेटर क्या करेगा, लिक्विडेटर में नॉट विथ स्टैंडिंग दैट ही हैज एंडेवर्ड टू सेल और हैज टेकन पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, हो सकता है उसने पहले बेचने की कोशिश भी करी हो, ठीक है, या उसने पोजेशन भी ले लिया हो, और एक्सरसाइज एनी एक्ट ऑफ ओनरशिप इन रिलेशन देयरटू और डन एनीथिंग इन परसुएंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मेक एन एप्लीकेशन टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी विद इन 6 मंथ। तो 6 महीने में इसको एक एप्लीकेशन देनी है फ्रॉम द लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट और सच एक्सटेंडेड पीरियड एज में बी अलाउड बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी टू डिस्क्लेम द प्रॉपर्टी और कॉन्ट्रैक्ट। भाई ये प्रॉपर्टी या ये कॉन्ट्रैक्ट मैं जो है डिस्क्लेम करना चाहता हूँ, ठीक है, लेकिन अपने आप नहीं कर सकता, और 6 महीने का तो पीरियड है ही, 6 महीने के बाद में एक्सटेंड भी हो सकता है ये पीरियड। ठीक है, ये एक बात, आगे देखते हैं। उसके बाद में अगर मान लो एक आदमी ने इंक्वायरी करी कि ऐसा है जी कि मुझको ये पता चला है कि तुम ये प्रॉपर्टी डिस्क्लेम करना चाहते हो, एक आदमी लिक्विडेटर के पास आता है, वो कहता है जी मुझे पता चला है कि आप इसको डिस्क्लेम करना चाहते हो। उसने राइटिंग में इंक्वायरी करी कि भाई किससे, लिक्विडेटर से, कि वेदर ही विल मेक एन एप्लीकेशन टू हैव सच प्रॉपर्टी डिस्क्लेम एंड ही डिड नॉट कम्युनिकेट हिज इंटेंशन टू डू सो विद इन 1 month फ्रॉम रिसीट ऑफ सच इंक्वायरी। लिक्विडेटर के पास एक इंक्वायरी आई राइटिंग में, ठीक है, कि भाई आप क्या डिस्क्लेम करना चाहते हो, और उसका कोई जवाब नहीं देता लिक्विडेटर,
ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, तब तक वो एप्लीकेशन नहीं लगा सकता। ठीक है, उसको जवाब देना पड़ेगा, मैं हाँ मैं कुछ तो बोलेगा ना, मैं डिस्क्लेम करना चाहता हूँ या नहीं करना चाहता हूँ। तो जब तक उसको जवाब नहीं देता, अगर 1 महीने में भी रिप्लाई नहीं किया तो फिर एप्लीकेशन नहीं, क्योंकि होता क्या है कि बाद में वो लड़ने वहां पहुंच जाएगा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास कि जी मैं तो इससे इंक्वायरी करी थी, कोई जवाब नहीं दिया और इसने एप्लीकेशन डाल डिस्क्लेमर के लिए। उसके बाद द लिक्विडेटर शेल सर्व ए नोटिस टू पर्सन्स इंटरेस्टेड इन द ओनर्स प्रॉपर्टी और कॉन्ट्रैक्ट एटलीस्ट 7 days बिफोर मेकिंग। भाई ऐसा है, उसकी रिटर्न इंक्वायरी आ गई, जो पर्सन इंटरेस्टेड है ये क्या करेगा, एप्लीकेशन लगाने से 7 दिन पहले उसको ये कहेगा कि भाई मैं एप्लीकेशन लगाना चाहता हूं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन इज पर्सन इज इंटरेस्टेड इन द ओनर्स प्रॉपर्टी और कॉन्ट्रैक्ट। ये कब इंटरेस्टेड होगा, पहला ही इज एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट और सब्जेक्ट टू द बर्डन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और क्लेम्स एन इंटरेस्ट इन अ डिस्क्लेम्ड प्रॉपर्टी और इज अंडर लायबिलिटी नॉट डिस्चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ अ डिस्क्लेम्ड प्रॉपर्टी। मान लो किसी के पास कोई लीज होल्ड लैंड थी, ठीक है ना, अब लीज पे जिसने ले रखी थी उसके पास मान लो उसका कोई इंटरेस्ट है उसमें, ठीक है, ये उस प्रॉपर्टी को डिस्क्लेम करना चाहता है, वो कहेगा भैया मेरा पहले लीज राइट तो दे दो। ठीक है, उसका कोई इंटरेस्ट है उस डिस्क्लेम्ड प्रॉपर्टी में। तो सब्जेक्ट टू द ऑर्डर ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी अप्रूविंग, अब ये एप्लीकेशन लग गई। 2-3 चीजें, पहली बात कि 6 महीने के अंदर डिसाइड करना है, एप्लीकेशन लगानी है, एक्सटेंड हो सकता है। दूसरी बात, जो इंटरेस्टेड है वो इंक्वायरी करेगा विन राइटिंग, ओरली इंक्वायरी करेगा और उसके 1 महीने के अंदर लिक्विडेटर को जवाब देना होगा। अगर जवाब नहीं देता तो एप्लीकेशन ही नहीं लगा सकता। फिर 7 दिन पहले उसको बताएगा, एटलीस्ट 7 days बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन, जिसने इंक्वायरी करी थी। कौन पर्सन इंटरेस्टेड है, ये पर्सन इंटरेस्टेड हो सकता है। दूसरा, अब मान लो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी हैज पास्ड द ऑर्डर, इट हैज अप्रूव्ड द डिस्क्लेमर, तो ये जो डिस्क्लेमर है इट शैल ऑपरेट टू डिटरमिन फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्क्लेमर। अब इसमें क्या होगा, राइट्स इंटरेस्ट एंड लायबिलिटीज ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर इन और इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी। तो जो राइट की बात होगी इसमें डिस्क्लेमर में, लायबिलिटी की बात नहीं होगी। ठीक है भाई, डिस्क्लेमर का क्या मतलब है, डिस्क्लेमर का मतलब आपने लैंड को डिस्क्लेम कर दी तो वो लैंड आपकी नहीं रही, लेकिन लैंड में अगर आपने कुछ देना है तो वो देना पड़ेगा अभी भी। ठीक है, अब आप कहोगे इसका फायदा क्या हुआ। ठीक है भाई, अगर देना ही था उसने डिस्क्लेम क्यों करी थी, डिस्क्लेम इसीलिए तो करी थी उसको पैसे देने थे। ठीक है ना, लेकिन वो ही क्या कहता है, द राइट्स इंटरेस्ट एंड लायबिलिटीज ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर in or in respect of the property or contract disclaimed, but shall not, except so far as is necessary for the purpose of releasing the corporate debtor and the property of the corporate from liability, affect the rights, interest or liabilities of any other person. ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी उस राइट्स हैं, कोई इंटरेस्ट है या लायबिलिटीज ऑफ एनी अदर पर्सन, ठीक है, तो उसके राइट्स, उसके इंटरेस्ट या उसकी लायबिलिटीज खत्म नहीं होंगी। ठीक है, कॉर्पोरेट डेटर रिलीज हो जाएगा और प्रॉपर्टी ऑफ द कॉर्पोरेट रिलीज हो जाएगी फ्रॉम लायबिलिटी। ठीक है, लेकिन कोई दूसरा आदमी जो है उसको छुटकारा नहीं है, ना तो उसके राइट्स कम हो रहे हैं, ना उसका इंटरेस्ट कम हो रहा है, ना उसकी लायबिलिटीज कम हो रही है। ठीक है, और अगर मान लो इस डिस्क्लेमर से जिसके राइट खत्म हो गए, ठीक है, जिसके राइट खत्म हो गए, पर मान लो किसी के पास लीज थी उसी लैंड की, अब कंपनी वो उसने लीज खत्म कर दी, लीज टर्मिनेट कर दी, ठीक है ना, डिस्क्लेम कर दी प्रॉपर्टी, तो अगर वो इफेक्ट हो गया ना इस डिस्क्लेमर से, तो जो पर्सन इफेक्टेड बाय डिस्क्लेमर है ही शैल बी डीम्ड टू बी ए क्रेडिटर ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। तो अगर मान लो उसमें ये था कि भाई इन केस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ लीज उसको कंपेंसेशन मिलेगा। ठीक है, जैसे लीज के केस में अगर हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में देखें तो हमारे पास अलग अलग वो है कि एग्रीकल्चरल लीज उसका इतना पीरियड हो सकता है, बिजनेस लीज का ये हो सकता है, तो वो सारी चीजें अगर हैं मान लो, तो उस केस में क्या होगा, ये क्रेडिटर बन जाएगा ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। जो भी अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन या डैमेजेस पेएबल है इन रिस्पेक्ट ऑफ सच इफेक्ट एंड में अकॉर्डिंगली बी पेएबल एज ए डेट इन लिक्विडेशन। ठीक है, अंडर सेक्शन 53(1)(f। तो सेक्शन 53(1)(f) में ये आ जाएगा। ठीक है, तो सेक्शन 53(1)(f) मेरे ख्याल अदर डेट्स एंड ड्यूज होगा, एक बार देख लेते हैं।
ये 53(1)(f) में है जी, एनी रिमेनिंग डेट्स एंड ड्यूज। तो एनी रिमेनिंग डेट्स एंड ड्यूज में ये आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट आपको 75 डेज में देनी है। इसमें डिटेल्स है, ये तो हम देख ही सकते हैं, खास बात नहीं है। ठीक है, अर्ली डिसोल्यूशन। अर्ली डिसोल्यूशन में अगर लगता है कि भाई कुछ मिलना ही नहीं है, लिक्विडेशन प्रोसेस कॉस्ट ही नहीं मिलनी, ठीक है ना, या जो अफेयर्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर है, दे डू नॉट रिक्वायर एनी फर्दर इन्वेस्टिगेशन, तो यहाँ पर अर्ली डिसोल्यूशन के लिए भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है, अगर लिक्विडेटर को लगता है कि भाई जो लिक्विडेशन प्रोसेस कॉस्ट भी कवर नहीं होगी या कोई और इन्वेस्टिगेशन की जरूरत नहीं है, तो अर्ली डिसोल्यूशन के लिए भी अप्लाई कर सकता है। अर्ली का मतलब 365 डेज से पहले। ठीक, प्रोवाइडेड दैट इफ द लिक्विडेटर हैज रीजन टू बिलीव टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग दैट द बुक्स ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर आर नॉट रिलायबल। ठीक है ना, तो उस केस में कई बार क्या होता है, बुक्स रिलायबल नहीं होती, तो ही शैल आल्सो प्रोवाइड सच एस्टिमेट्स बेस्ड ऑन रिलायबल रिकॉर्ड्स एंड डेटा अदरवाइज अवेलेबल टू हिम। अब ये कहाँ से आ जाएगा, उसके पास क्लेम्स के बेसिस पे आ सकता है, डॉक्यूमेंट्स देंगे लोग। ठीक है ना सर, इस केस में जब अभी हम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे थे कि वो हाँ। लिक्विडेशन जो हमारी कॉस्ट है उसको रीइंबर्स कर देंगे, तो अगर मान लीजिए वो नहीं हो रही है, जैसे इस वाले हमारे उसमें आ रहा है, तो अर्ली बिल्कुल है। डिसोल्यूशन के लिए भी जा सकते हैं। अगर हाँ। जैसे अगर हमारे हाँ। पास फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस नहीं है तो हाँ, बिल्कुल जा सकता है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल तो सही आप पॉइंट आउट किया। सॉल्यूशन बता रहे थे कि जैसे हाँ, ऑपरेशन हाँ। बिल्कुल 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 तो बिल्कुल उस ठीक बात। केस हाँ में- हाँ, उस केस में बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है आपकी। हाँ, तो यहाँ जा सकता है, क्योंकि ऑपरेशन डायरेक्टर कह सकते हैं भाई हम तो लेने आए हैं, देने थोड़ी आए हैं, तुम उल्टा कह रहे हो हमारे से और पैसे मिलाओ। भैया हमारे पास नहीं है पैसे वैसे, तुम कर लो जो कुछ करना है ना, तो डिसोल्यूशन कर देगा ये चीज। जी सर उसको 365 दिन में तो खत्म करना ही है, तो वो तो एग्जैक्टली 365 से कम ज्यादा तो हो ही सकता है। तो अर्ली हो गया 365, और 365 के बाद तो उसको वो लेना होगा ना। हाँ, एक्सटेंशन लेनी। हाँ हाँ, तो फिर उसको क्या, उसको अर्ली कर देगा ना, जब सब कुछ ठीक है तो 365 के अंदर ही खत्म करो। हाँ 365 से पहले ही कर देगा वो। भाई तो क्या सब होता में है, तो कई जनरली बार तो क्या early होता है, होता होगा। नहीं ऐसा नहीं, इनका भी तो इंटरेस्ट होता है, इनको फीस मिलती है पर मंथ की, मान लो पर मंथ फीस फिक्स है, अगले को क्या जल्दी पड़ी है, करता रहेगा उसको टुक 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 टुक, समझ रहे हो, ये चीज है। बहुत सारे लोग उसको बढ़ाने में भी इंटरेस्टेड होते हैं, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल या लिक्विडेटर भी। तो आगे चलते हैं। ठीक है जी, उसके बाद में ये अदर एक्सपेंसेस हैं इनकर्ड बाय द लिक्विडेटर वेदर पेड और नॉट, तो ये भी इसका पार्ट बनते हैं, कॉस्ट होती है। उसके बाद आगे देखते हैं, ये तो इसलिए चार्ट दिया हुआ है कि भाई 15 दिन बाद आपको करना है, इसमें खास बात नहीं है। ठीक है ना, ये कब कब प्रोग्रेस रिपोर्ट देनी है ये है। अगर बीच में चला गया तो उसके 15 दिन, मान लो 12 फरवरी तक रहा तो 27 फरवरी तक दे देगा, अदरवाइज तो 15 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर है। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज इसमें आती है कि कोई वर्कमैन या एम्प्लॉय है, उसने क्लेम नहीं किया मान लो, ठीक है, अब उसकी कंपनी बंद हो गई, वो चला गया दुबई। ठीक है ना, तो ये फिर बुक्स में जो क्लेम है उसके बेसिस पे कर लेते हैं, चाहे वो वर्कमैन या एम्प्लॉय ने क्लेम नहीं भी दिया है तो भी आप उसको बुक्स के बेसिस पे क्लेम आप ले सकते हो। फिर ये टेबल है हमारी स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन कमेटी की। ठीक है ना, तो इसमें भी पूछ सकता है कि भाई स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन कमेटी में कौन कौन से आएंगे, और इसी के साथ वो रिलेटेड केस लॉज है कि उसने कहा था कि भाई वर्कर्स यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव को भी ले ले, तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने कहा जितने मर्जी ले लो, उसमें क्या दिक्कत है। ठीक है, तो इस पर पूछ सकता है कि भाई कितना, ये लिक्विडेशन वैल्यू से कैलकुलेशन होती है कि 50% से कम है तो 2 हैं, और 50% या उससे ज़्यादा है तो 4 हैं सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के केस में। ठीक है ना, सिक्योर्ड में सिर्फ वही सिक्योर्ड क्रेडिटर में जिन्होंने रिलिंक्विश कर दिया, जिन्होंने रिलिंक्विश किया नहीं वो तो इसमें आएंगे ही नहीं। ठीक है ना, और if the stakeholders of any class fail to nominate their representatives, the required number, एक मिनट जी, हाँ जी, तो आगे चलते हैं। ये तो आप देख ही लोगे, इसमें खास बात नहीं है। अच्छा, एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना, वही मैं इसमें हाईलाइट कर रहा हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें देखो प्रोसेस बेस्ड है।
जो इस केस स्टडी बनाएगा ना वो भी प्रोसेस बनाएगा और इसी में से मिक्स करके कुछ पॉइंट्स ले सकता है वो, ठीक है। हम लोग भी कोशिश करेंगे केस स्टडी बनाने की। कल योगेश चटवानी जी ने बहुत बढ़िया केस स्टडी तैयार की है वॉलंटरी लिक्विडेशन पे, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये जो लिक्विडेटर है, ही विल कन्वीन ए मीटिंग ऑफ द कंसल्टेशन कमेटी व्हेन ही कंसिडर्स नेसेसरी, और अगर कंसल्टेशन कमेटी चाहे तो वो भी कर सकती है व्हेन ए रिक्वेस्ट इज रिसीव्ड एटलीस्ट 51%, ठीक है। जैसे CIRP में कितनी हुई थी वहाँ 33% है मेरे ख्याल, या 30% है, 33% है, हाँ 33 है ना, हाँ। तो यहाँ पर ये 51 है, ये ध्यान रखने वाली बात है। तो अगर 51% चाहे तो मीटिंग हो सकती है। उसके बाद में आता है जी मोड ऑफ सेल, बस थोड़ा सा और रह गया, ज़्यादा नहीं रहा, उसको 5-7 मिनट में खत्म कर देता हूँ। मोड ऑफ सेल में क्या है कि इंपॉर्टेंट चीज़ जो ये है कि भाई पूछ सकता है जहाँ पर, वो ये कहता है कि भाई आपको क्या करना है कि प्राइवेट सेल, देखो एक तो होती है ऑक्शन सेल, नॉर्मली क्या है ऑक्शन सेल करोगे क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट होती है, ठीक है ना, वो भी ई ऑक्शन के थ्रू होती है नॉर्मली। लेकिन प्राइवेट सेल में क्या है कि प्राइवेट सेल में आप कर सकते हो अगर पेरिशेबल है या डिटीरियोरेट हो जाएंगे, या आपको ऑक्शन किया आपने और ऑक्शन में रिजर्व प्राइस भी नहीं मिला, अब रिजर्व प्राइस से ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है, या फिर आपने प्रायर परमिशन ले ली, प्रोवाइडेड दैट द लिक्विडेटर शेल नॉट सेल द एसेट्स विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बाय वे ऑफ प्राइवेट सेल। इसका क्या मतलब हुआ? अब इसका मतलब मैं तो ये समझता हूँ कि भाई प्राइवेट सेल अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की परमिशन है तो इनको भी हो सकती है, आप रिलेटेड पार्टी ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर को भी दे सकते हो, रिलेटेड पार्टी को भी दे सकते हो, एनी प्रोफेशनल अपॉइंटेड को भी दे सकते हो, अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की परमिशन है। क्या आप एग्री करते हैं मेरी बात से? ये रेगुलेशन निकाल लेते हैं, रेगुलेशन एक बारी। परमिशन लेनी पड़ेगी एजुकेटिंग अथॉरिटीज, वो तो है ही, पर मैं कह रहा हूँ कि भाई परमिशन ले लोगे तो इसको भी कर सकते हो, बिल्कुल, क्योंकि लिखा है ना, हाँ इसमें क्लियर है बिल्कुल, प्रोवाइडेड दैट द लिक्विडेटर शैल नॉट सेल द एसेट्स विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी बाय वे ऑफ प्राइवेट सेल टू दिस। तो इसका मतलब आप अगर रिलेटेड पार्टी को सेल किए विद प्रायर परमिशन तो वो भी ओके है, ठीक है। उसके बाद में रियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट बाय सिक्योर्ड क्रेडिटर, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे कोई स्टडी भी बना सकता है वो, ठीक है। सबसे पहला तो ये है, इसको कितनी देर में बताना होता है, विद इन 1 मंथ ऑफ लिक्विडेशन, ठीक है। ये तो हमने टाइमलाइन में पढ़ लिया। ए सिक्योर्ड क्रेडिटर हु सीक्स, भाई इसके बाद 2 ऑप्शन है, या तो रियलाइज करेगा या उसको रिलिक्विश करेगा। जो कुछ करना है 1 महीने में बताए, अगर 1 महीने में नहीं बताता ना तो ये मान लिया जाएगा रिलिक्विश कर दिया, ये भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो सिक्योर्ड क्रेडिटर हु सीक्स टू रियलाइज इट सिक्योरिटी इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 52 शैल इंटीमेट द लिक्विडेटर ऑफ द प्राइस, कितने प्राइस पर वो बेचना चाहता है, ठीक है। अब ये उसको बताएगा लिक्विडेटर विद इन 21 डेज कि भैया मेरे पास तो तुम्हारे से ज्यादा का ग्राहक है। इफ ए पर्सन इज विलिंग टू बाय द सिक्योर्ड एसेट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इंटीमेशन, ठीक है, एट ए प्राइस हायर देन द प्राइस इंटीमेटेड अंडर सब रेगुलेशन 1, ठीक है। तो ये कब बताएगा? लिक्विडेटर बताएगा बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इंटीमेशन, जब उसने इंटीमेट किया, इंटीमेट के 30 डेज है, विद इन 30 डेज ऑफ लिक्विडेशन उसको इंटीमेट करना है, और बिफोर एक्सपायरी ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इंटीमेशन, ये इसको बताना है, अगर इसके पास उससे बढ़िया ग्राहक है तो लिक्विडेटर के पास, ठीक है। और अगर लिक्विडेटर बता देता है सिक्योर्ड क्रेडिटर को भाई ये बंदा है इसको बेच दो, तो सिक्योर्ड क्रेडिटर शैल सेल द एसेट्स टू सच पर्सन, वो उसी को बेचेगा, ठीक है। लेकिन अगर लिक्विडेटर इन्फॉर्म नहीं करता सिक्योर्ड क्रेडिटर को, ठीक है, या जो पर्सन का उसने नाम बताया था वो बाई नहीं करता, तो सिक्योर्ड क्रेडिटर में रियलाइज द सिक्योर्ड एसेट इन द मैनर इट डीम्स फिट बट एटलीस्ट एज द प्राइस इंटीमेटेड अंडर सब रेगुलेशन 1, ठीक है। लेकिन कम से कम उतना प्राइस उसने कहा था, सिक्योर्ड क्रेडिटर ने कहा था भाई मेरे पास 100 करोड़ का ग्राहक है, चाहे अल्टीमेटली उसकी प्रॉपर्टी बाद में 85 में बिके और 100 लेस हो जाएंगे, ठीक है। ये है एक इसमें और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो आता है कि लिक्विडेटर टू रियलाइज अनकॉल्ड कैपिटल और अनपेड कैपिटल डिस्ट्रीब्यूशन। जो कोई अनपेड कॉल्स पड़ी है, अनपेड कैपिटल पड़ी है, उसको ये रियलाइज कर सकता है। कई बार क्या होता है उसके ऊपर भी चार्ज क्रिएटेड होता है, ठीक है। जो ऐसे भाई कंपनी कह दे यार मैंने इतने पैसे लेने, उसको भी मॉर्टगेज कर देते हैं, उस पर भी इनकम्बरेंस क्रिएट कर देते हैं,
ठीक है, वो कहता है कि नॉट विथस्टैंडिंग एनी चार्ज और इनकम्बरेंस ऑन द अनकॉल्ड कैपिटल ऑफ द कॉर्पोरेटर, liquidator shall be entitled to call and realize the uncalled capital and to collect the arrears if any, but shall hold all money so realized subject to the rights if any of the holder of any such charge. ठीक है, तो उस मनी को सेपरेटली रखेगा वो, ठीक है, तो वो किस लिए रखेगा, क्योंकि एक किस्म से वो भी सिक्योर्ड क्रेडिटर ही हो गए ना, ये चीज। आगे चलते हैं, ऑल मनी इज टू बी पेड इनटू बैंक अकाउंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्लॉज है। इसमें क्या होता है कि एक कैश रख सकता है ये 1 लाख रुपीस का, ठीक है, और 5,000 रुपए से ऊपर जो है वो सारी आपको चेक या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करनी है, ठीक है। और यही कैश की लिमिट उसमें कम थी ना, जो इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी में कितनी लिमिट बता सकते हैं कोई? जो इंडिविजुअल या पार्टनरशिप फर्म की इंसॉल्वेंसी वो है बैंक्रप्सी, उसमें भी तो बैंक्रप्सी ट्रस्टी होता है ना, उसके लिए कुछ लिमिट है, वो कम है, उसमें कितना कैश, हाँ कुछ ऐसा ही लिमिट है, आई डोंट नो एग्जैक्ट क्या है, बट वो कम है, इससे काफी, जैसे यहाँ पर 1 लाख है ना, वहाँ कम है, ठीक है, और 5,000 रुपए से ऊपर जो भी ज्यादा ट्रांजेक्शन होगी वो इसमें करेगा। सर वहाँ पे 1 लाख का लिमिट नहीं है, लेकिन चेक वाला 10,000 है, 5,000 की जगह 10,000 के चेक पे उसको 10,000। ठीक है, ये इसका कोई आप रेगुलेशन बता सकते हैं मेरे को, इंडिविजुअल और इंसॉल्वेंसी वाला, उसको जरा एक बार पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है वो। आप एक बार मुझे रेगुलेशन नंबर बता दीजिए। बैंक अकाउंट फॉर बैंक्रप्सी प्रोसेस, यही होगा ना? हाँ, ये है जी आपका चैप्टर 6 में आता है, ये चैप्टर 6 है आपका जो बैंक्रप्सी रेगुलेशंस में। इसमें ये कहता है कि एक तो कैश रख सकता है वो 10,000 रुपए का, ठीक है, यहाँ पर कैश की लिमिट है, यहाँ पर कैश लिमिट है 1 लाख रुपए, ठीक है, और ये कैश रखने की बात है, जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन उसकी बात कहाँ है? उसमें तो कुछ बात ही नहीं करता वो कहता सारे पैसे जो है आप अगले दिन जमा करा दो। सर 5,000 रुपीज है वो भी। हाँ, सर फोर्थ पॉइंट है, ऑल पेमेंट्स आउट ऑफ द अकाउंट बाय द बैंक्रप्सी ट्रस्टी अबव 5,000, ठीक है ना। तो 5,000 देखो दो चीजें हैं, हाँ दोनों में सेम है, 5,000 ही है, ठीक है ना। और जहां तक कैश रखने की बात है, कैश इसमें रख सकता है 10,000, हाँ वो बैंक्रप्सी वाले केस में, और यहाँ पर वो 1 लाख है, ठीक है। अब क्लियर है मेरे ख्याल? जी। उसके बाद आगे देखते हैं, क्यों ना चीजों को मिला के पढ़ेंगे ना तो जल्दी समझ में आता है। कॉर्पोरेट लिक्विडेशन अकाउंट थोड़ा सा है, कर लेते हैं मेरे ख्याल। अब क्या इसको क्या अलग अगले दिन के लिए छोड़ना, क्योंकि कल हमने वॉलेंटरी लिक्विडेशन करना है। कॉर्पोरेट लिक्विडेशन अकाउंट में क्या है कि भाई आपको जो भी अनक्लेम्ड है उनको यहाँ पर रखना है, ठीक है, विद इन 15 days ऑफ द डेट ऑफ सच कमेंसमेंट अलॉन्ग विद एनी इनकम अर्न्ड देयर। तो बोर्ड शेल इसमें ये अकाउंट मेंटेन करेगा बोर्ड, पर मतलब आईबीपीआई। द बोर्ड शेल ऑपरेट एंड मेंटेन अकाउंट वी कॉल द कॉर्पोरेट लिक्विडेशन अकाउंट, ठीक है। जो भी अनक्लेम्ड डिविडेंड है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स हैं, वो सारा यहाँ पर इसको जमा कराना है, और इंटरेस्ट लगेगा 12% का अगर जमा नहीं कराता है तो, ठीक है। कितने दिन में जमा कराना है इसको? विद इन 15 days। हाँ जी सर, ये वाला जो 15 days वाला पॉइंट है, 1 मिनट प्लीज आप सेकंड और थर्ड को देखिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसके अंदर। हाँ, जो ऐसा थर्ड पॉइंट है वो, जो सेकंड पॉइंट है, सेक्यूनेटर क्या कहता है कि लिक्विडेटर शेल डिपॉजिट द अमाउंट, हाँ वो ये कहता है बिफोर ही सबमिट्स एन एप्लीकेशन अंडर सब रेगुलेशन 3 ऑफ रेगुलेशन 45। इसका मतलब पता क्या है? वो डिसोल्यूशन, हाँ, तो डिसोल्यूशन की एप्लीकेशन से पहले भाई आप, हाँ वो इसीलिए ना, डिसोल्यूशन के बाद तो स्ट्राइक ऑफ हो जाएगा ना, नाम ही कट जाएगा उस कंपनी का, तो उससे पहले थर्ड पॉइंट है वो बात करते हैं जब हमारा ये जब रेगुलेशन, मतलब जब नया आया सर, जब ये दोबारा ये वाला हमारा आया रेगुलेशन लिक्विडेशन प्रोसेस वाला, उस समय की बात करें कि तब हमें 15 days के अंदर ये पैसा जमा करवाना था, जो हमारा उसमें था।
बिल्कुल बिल्कुल Third बिल्कुल point. बिल्कुल, दो बातें हैं भाई। एक तो ये कि उसका कंपनी का लिक्विडेशन कंप्लीट हो चुका, तो जो बाद में पैसे बचे वो तो एप्लीकेशन लगाने से पहले जमा करा देगा, ठीक है। जी सर। और जो बीच बीच में पैसा आ रहा है ये उसकी बीच में ही हुआ ना किस्म से। नहीं सर, नहीं और सर, ये बोला है जब ये आया होगा ना सर, रेगुलेशन लिक्विडेशन प्रोसेस बाद में आया ना सर, अच्छा, मेरे ख्याल से तो तब हाँ। की बात कर रहे हैं, एट दैट टाइम। राइट जब राइट, बिल्कुल उसको बिल्कुल, ठीक है। हाँ हाँ, तो उस केस में 15 डेज ऑफ द डेट ऑफ सच कमेंसमेंट, ठीक है। जी तो क्योंकि ये पहले रेगुलेशन नहीं था, तो रेगुलेशन जब आया तो उससे पहले वाले जो है उसको 15 दिन में जमा करा दो, जी वरना वो अपने पास ही रख लेते होंगे। उसके लिए कहा भाई सर। 15 दिन में जमा कराओ, और बाकी के लिए कहा कि आप एप्लीकेशन से पहले जमा जी करा सर। दो। जी सर। और अगर आप नहीं जमा कराते तो उस केस में क्या है कि 12% का इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। और जिसको क्लेम करना है वो फॉर्म जे में वहां से क्लेम कर लेगा। फिर ये मॉडल टाइमलाइन है, ये तो हमने पहले डिस्कस कर ली है, इसमें कोई खास बात है नहीं, ठीक है ना। और बस हो गया पूरा कंप्लीट। तो मैंने कोशिश की है कि थोड़ा जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे